کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ کہ قرآن حدیث کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ بتاؤ کہ تم کو غیر اللہ سے مانگنا کیوں ضروری ہے بھائی؟ کیوں تم غیر اللہ سے مانگتے ہو؟ کیا معاذ اللہ تعالیٰ بن قادر نہیں ہے؟ جو تم شرک کیوں کہتے ہو؟ کیا اللہ نے کہیں کہہ دیا شرک ہے؟ تم کو ضرورت کیوں پڑ رہی ہے بتاؤ پہلے مانگنے کی غیر اللہ سے؟ بھائی تم نے شرک کیوں کہا، میں وہ پوچھ رہا ہوں. ہاں شرک ہے مانگنا، اور کیوں کہا کیا؟ ہاں تو پھر ثابت کون کرے گا؟ کوئی اور؟ تم ہی تو ثابت کرو گے. ارے قرآن قرآن کی آیت کیا بول رہی ہے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ہاں ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر. تو کیا اس میں تو ہے ہی نہیں کہیں بھی ارے غیب میں تو مانگنا شرک ہے بھیا. تم لوگ کے نہیں سمجھ میں آئے گا نا، وہی تو بولا ارے اللہ تو کے ہمیں نبی خود بول سمجھاؤ رہے نا. تھے ہم چلو تمہارے سمجھ میں آ گیا نا سنو تو گے. بتاؤ کہاں لکھا ہے. تمہارے سمجھ میں آ گیا تو غیب میں مدد مانگنا اللہ شرک کے ہے، یہ نبی کہاں لکھا ہے بتاؤ. جب اللہ کے نبی خود بول رہے ہیں کہ جب میں اپنے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو تم لوگ کو کہاں سے نفع نقصان پہنچائیں گے یار؟ وہ تو نفع نقصان کی آیت ہو گئی نا. اب غیب میں مانگنا شرک ہے، یہ اس کی دلیل دو. غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے، اس کی دلیل ہے. کیوں؟ اس بات کی نفی سے شرک ثابت ہو جاتا ہے کیا؟ اگر مانگنا نہیں جائز نہ ہو، غیر اللہ سے اگر مانگنا جائز ہے، اس کی اگر دلیل ہے بھائی. سنو، اگر جائز نہ ہو تو کیا شرک ثابت ہو جائے گا؟ شرک کے لیے تو نص قطعی چاہیے، نص قطعی پیش کرو. وہی تو بھئی بول رہا تم ہوں کہ اتنا عالم ہو، علم ہوتا نا بھائی تو تم اب تک جو ہے عالم نا ہو، بدعتی علمی نہیں بات ہوتے. کرتے ہیں. بریلوی چلو ہونے کے لیے جاہل ہونا صحیح کہتے ہیں ضروری ہے. بریلوی ہونے کے لیے جاہل ہونا ضروری ہے نا. سنو ہاں تمہارے تو پاس ہم ابھی میں ایسے وہ ہی بھیجتا ہوں، جاہل اس پہ دیکھو صحیح ہیں. تمہارا عالم خود سنو، کہہ رہا ہے شرک ہے. ہم ایسے ہی جاہل صحیح ہیں کہ بغیر دلیل ہم لوگوں پہ فتوے لگا کے قرآن اور حدیث میں اپنی عقلیں داخل نہیں کرتے. بھیا ہم جاہل ہی ٹھیک ہیں. دیکھو یہ تمہارا عالم ہے، اس کی ہمارا کتاب ہے فتاوی مسعودیہ، ٹھیک ہے؟ پروفیسر مسعود احمد نام جانتے ہو؟ نہ نہیں جانتے. ہیں؟ اپنے ہی عالم کو نہیں جانتے یار، اپنے ہمارے گھر کی تو اکابر خبر سے رکھو پیش پہلے کرو، بھائی. ہمارے اکابر سے. تو یہ پروفیسر مسعود احمد کون ہے؟ اکابر ہیں ہمارے. ارے انا للہ، تم کو یہی نہیں پتا ابھی؟ تمہیں پتا ہے وہ ہمارے اکابر ہیں. یہ دیکھو کنہیں عالم کو بھی لا کے ہمارا اکابر بنا دو گے. ارے پہلی تمہارے بات بڑے ان جو ہے کی نا، بھی تمہارے کتاب بڑے میں ان کے شرک سامنے نہیں ہے گھٹنے لکھا ہوا. ٹیکتے ان ہیں. کی بھی کتاب میں شرک نہیں ہوگا لکھا ہوا. اگر وہ سنی ہوں گے تو ان کی تمہارے کتاب بڑے میں شرک نہیں ہوگا. تمہارے بڑے گھٹنے اب یہ ٹیکتے ہیں بتاؤ، بھائی. قرآن شریف سے تمہارے پاس دلیلیں ختم ہو گئیں؟ دلیل دلیل اتنی اب وہی تو دلیلیں بول رہا ہوں، لاد دیں گے کل سے تمہارے گھر سے ہاں؟ نبی علیہ السلام سے مدد مانگنے کی. اتنی دلیلیں لاد دیں گے دب کے سانس اٹک جائے گی تمہاری. اتنی دلیلیں ایک تو لاد دے دیں دے گے بھائی، ہم. ایک تو دے دو ایک. مشرک کہتے کہتے جو تمہاری یہ زبان نہیں تھکتی نا، تمام اپنے اکابر کو تمہیں مشرک کہنا پڑے گا. ایک تو دلیل دے دو. امداد المشتاق کی دلیل تمہیں کل دی تھی میں نے. کیا؟ کہ اشرف علی تھانوی نے مزار پہ جانے میرے والے پاس بھیجو، واقعے اس کو پہ بھیجو. کرامت کہا تو وہ میرے مشرک پرسنل ہو پہ گئے. بھیج دو. ٹھیک ہے، اس کو ہم بھیج دیں پرسنل گے. پہ بھیجو. چلو اس کو بھیج ہاں دیں گے ہم. پرسنل بھیجو. اور اور ایک دوسری ایک بات ایک قرآن یہ ہے، ایک- قرآن سے بولا میں نے، بھیجو نا قرآن دو. اچھا ابھی تم کیا پیش کر رہے تھے؟ عالم کی کتاب. میں نے عالم کی پیش کر دی، تم اب کہہ رہے ہو قرآن ارے پیش بھائی کرو. پہلے میں نے قرآن پیش کیا، یہی تو تم لوگ کو سمجھ میں نہیں تو آتا ہے. قرآن پہلے میں تو یہ شرک اگر ہے ہم ہی بولے نہیں. میں سے قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے اس میں شرک لکھا ہے غیب میں مدد مانگنا؟ کہاں ہے اس میں؟ اللہ املک لنفسی نفعا ولا اب ضرا، دوسری قرآن ہے طرف کہ چلے نہیں ہے؟ گئے، اب دوسری طرف چلے گئے، اس میں بھی شرک وَيَعْبُدُونَ کہاں ہے؟ مِن دُونِ اللَّهِ، قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ پورے قرآن میں مطلب ایسے ہی گھومتے پھرو گے. اب یہ بتاؤ اس میں بھی شرک ایک کہاں ہے؟ آیت ایک آیت پڑھ، تم ایک آیت پڑھو قرآن کی. چلو ٹھیک ہے، سنو تھوڑی ایسے نہیں، ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کو ٹائم دے دے کے بات کرتے ہیں. میں ہاں یہ کہہ رہا ہوں پورے قرآن بات مجید جب میں، نہیں، بات کرنے کا اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ آج یہاں پہ پورے مجلس قرآن نکاح مجید میں منعقد ہو رہی ہے کیا ہمارے. ہاں کیا ہو رہی ہے؟ قرآن کی آیت پیش کرو. ہاں کیا ہو رہی ہے منعقد؟ میرے ساتھی ہیں، دوست، ان کی مجلس نکاح ہے. ہاں تو وہ اچھا مجلس نکاح ہے. اچھا ہوں. چلو اب قرآن شریف کی اس نکاح کے موقع پہ ایک آیت پیش کرو کہ جس کے اندر شرک لکھا ہو غیب میں مانگنے میں. کیا امور ہوا؟ قرآن غیر ابھی پڑھنے عادیہ. جا رہے تو بھول گئے؟
पढ़ने जा रहे थे, भूल गए क्या? मैं कहाँ पढ़ने जा रहा था भाई? जब तुम शिरकी साबित नहीं अभी तो कर पेश पा रहे करने हो, जा रहे थे, एक जब आयत ना शिरकी कुरान साबित की। नहीं कर पा रहे हो तो फिर मैं कहाँ से पेश करूं भाई? कुरान की एक आयत पढ़ो जिसमें लिखा हो, चलो। अरे तुम तो पढ़ दो पहले। मैंने तो ये मैंने तो कहा दो कि दो तीन अगर तीन कोई चार चार काम आयतें पढ़ जायज दी। साबित ना हो, सुनो, कोई काम जायज साबित ना हो तो ये शिरक बोल दो नहीं बन कुरान जाता नहीं वो आता, पहले भाई, शिरक नहीं ठीक है, बन दावे जाता। ना करो, बोलो कुरान पढ़ने नहीं आता, देख के पढ़ लो भाई। तुम्हें भी नहीं आता, तुमने कौन सी दलील दे दी शिरक की? तुम्हारे पास क्यों, दलील चार क्यों नहीं पांच है? आयतें अच्छा, पढ़ी होनी है कि? अगर मैं दलील कुरान से दे दूं तो वो मान लो फिर उससे हाँ जायज साबित होगा, ठीक है, लेकिन तुमने तो शिरक का इतना बड़ा हुक्म लगा रखा है, इंसान ईमान से खारिज हो जाता है, तुम्हें पहले पेश करनी हाँ चाहिए। पेश करो चलो। तो अरे भाई, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन इस वला ज़र्रा वलौ अरे कुन्तु इसमें गैब अअलमुल में ग़ैब मांगना शिरक है, ये लस्तक्तरतु, कहाँ यहाँ लिखा सुन है? सुन, पूरी बात सुनो, पूरी बात। सुनाओ सुनाओ। ये लस्तक्तरतु में लाम कौन सी पता है? कौन सी है बताओ? इसमें गैब नहीं है लौ फिलहाल। कान फीहिमा, सुन, फिर बोले, बीच में ना बोलो, सुनो बात, ठीक है। सुनाइए। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता में जो लाम है वही लाम यहाँ भी है, हाँ तो कि अगर दुनिया दुनिया वमा फिया में अगर कई सारे माबूद होते तो जमीन आसमान में फसाद वाक़ हो जाता। इससे क्या पता चला, कई माबूद है नहीं, हाँ ठीक है। हाँ तो वहां भी वही लाम है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफे नुकसान के मालिक होते हो, तुम जैसे लोगों की, जाहिलों की अगर वो मदद कर सकते हैं, हाँ ठीक है, पुकारने पे, तो वो भी हाँ बहुत सारी खैर जमा कर लेते, लेकिन जमा नहीं किए, तो इसका मतलब क्या है कि वो भी क्या है, हाँ तुम जैसे जाहिलों के पुकारने पे मदद नहीं करते हैं, हाँ मदद अल्लाह ही करता है, ठीक है। हाँ, हो गया। अब मैं हाँ बोलूं तो अब ये बताइए, उसके अंदर भी लाम है, उसके अंदर हाँ भी लाम है, ठीक है, कुरान मजीद में बहुत सी आयतों में भी लाम है। तो अब ये हाँ, बताइए, पढ़ ये के दिखाओ। लाम लेकर बोलते तुम तुम्हारा जो खाली कलाम बोलते हो, था, पढ़ के दिखाओ, रुको, खामोश रहो। अब जो तुम्हारा मिसाल दो भाई। अब सुन तो लो भाई। अब तुम जाहिलों का हाँ इल्म गैब में मदद मांगना शिर्क साबित हो गया इसमें? तो और अरे तुम जाहिल जो ये कहते तुम्हारी हो समझ कि में नहीं गैब में आएगा, मदद तुम मांगना जाहिल हो, शिर्क तुम है, टेंशन मत ये लो। कहाँ से साबित हो गया इसमें? न तुमसे एक आयत पढ़ी जा रही है, अरे न तुमसे तुमसे पढ़ी जा मिसाल रही दी जा है, रही है। गैब में मदद मांगना शिर्क है, इस पर अरे पढ़ी जा भाई, रही है। कुरान की एक आयत तो पढ़ दो, पढ़ के बता एक तो दो कि आयत हाँ पढ़ दो तुमको भी खाली, कुछ आता है। एक आयत तुम दे दो, दूसरी मैं पढ़ूंगा, जाओ पहली आयत तुम दे दो। लो, तीन चार आयतें कुरान के है पढ़ दो, ही नहीं चलो कम उसमें, से है कम ही ऐसे नहीं, ही सुना पूरा दो कोई कुरान आयत, पढ़ तो दो तुम तुम इस। लगे मुझे कि हादिसी हो। मैंने ये नहीं कहा तुम पूरा कुरान पढ़ दो, मैंने कि एक आयत पढ़ो जिसमें शिर्क हो। क्यों सुना रहे हो चलो मुझे वो छोड़ो, आयतें? वो तुम वो आयतें सब सुना छोड़ो, ही क्यों रहे हो? तुम वो सब छोड़ो, तुम ये कम से पहले कम ये एक आध दो आयत पढ़ दो ताकि पहले ये लगे कि बताओ हादिसी हो मुझे, यार। मुझे वो आयतें सुना ही क्यों रहे हो जिसमें शिर्क है ही नहीं भैया? ऐसे तो तुम पूरा कुरान सुना दो, कह दो मैंने पूरा कुरान सुना दिया, तुमने एक आयत नहीं पढ़ी। अरे वो पढ़ो जिसमें शिर्क है चलो भैया। कम से कम, चलो चलो मान लो मैं नहीं बता पाया, ठीक है। हाँ तो तुम शिर्क क्यों कह रहे हो? जब तुम बता नहीं पाए तो तुम तो नहीं बहुत चलो, बड़े सुनो जाहिल सुनो, साबित हुए। अरे भाई सुन, अगर मैं नहीं बता पाया तो मुशरिक कैसे हो गया, लेकिन अब तू बता जहाँ लिखा हो कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क हाँ नहीं तो है, मैं आयत पेश मुशरिक कर। नहीं हुआ ना? तुम मुशरिक कहोगे तो नहीं अब? तू एक आयत पेश कर, पहले पेश अब ये कर दे तो देखो, नहीं कहूंगा, अब नहीं देखो पेश कर पाया तो बदतमीजियां बोलूंगा। करने लगे तुम। यही सिखाया जाता है मदरसा देवबंद में। मैंने कहा तुम ये मुशरिक तो बदतमीजी नहीं है। कहोगे। नहीं नहीं, सुनो सुनो, दलील मांगना है तो सुनो सुनो बदतमीजी है। नहीं, बताओ बताओ, मुशरिक तो नहीं कहोगे? दलील मांगना बदतमीजी है। दलील नहीं, तू तड़ाक पे आ गया। दलील पेश करो, नहीं पहले मानूंगा आपने मुशरिक। जाहिलियत से शुरुआत की, फिर तू तड़ाक पे आ गए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, अब आप हमें मुशरिक तो नहीं कहोगे। चलो आपने कोई आयत पेश नहीं की, अब हमें मुशरिक तो नहीं दलील पेश कहोगे? करो, नहीं करूंगा। दलील पेश करो, मैं नहीं बोलूंगा, चलो। अच्छा, अगर मैं दलील पेश ना करूँ तो मुशरिक बोलोगे? हाँ मुशरिक, क्योंकि तो तुम्हारा क्यों अकीदा बोलोगे वही है, फिर मुशरिक? इसका क्या मतलब। दलील है तुम्हारे पास, क्यों हाँ, बोलोगे? फिर उसी पे आगे। अब अब आएंगे भाई उसी तुम्हारे पे, समझ जब में तुम नहीं मुशरिक आएगा। बोलोगे तो उसी पे आएंगे। दलील बताओ कौन सी है? अच्छा ये बताओ, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, इसका क्या मतलब है? तुम बताओगे किसमें? इसमें कहीं में भी गैब नहीं है। गैब में मांगना शिर्क है ही नहीं, इसमें कहीं नहीं लिखा। इसका तर्जमा तो कर दो एक बार। अरे अभी तुमने किया तो था, गैब है ही नहीं इसमें। क्या किया, क्या किया था? तुमने कहा था ना कि इसमें तमाम आलिया का इनकार है, कि अगर खुदा के अलावा तमाम और आलिया होते तो जमीन आसमान में फसाद बर्पा हो जाता। तो इसमें गैब का जिक्र अच्छा कहाँ है? ठीक है, यानी ये कहाँ लिखा है कि, ये कहाँ लिखा है कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है ना? हाँ वही वही, कहाँ लिखा है? तो ये कहाँ लिखा है कि फैजान से मांगना शिर्क है? फैजान से मांगना शिर्क है। चलो अब तुम ये ये दिखा। कहाँ लिखा है कि अब्दुल्ला से मांगना शिर्क हाँ है? तो मैंने कब कहा कि अब्दुल्ला से मांगना शिर्क है भाई? अब्दुल्ला से मांगना शिर्क नहीं है। अरे मैंने कब कहा कि शिर्क है? अरे मांगने से कौन सी चीजें मांगने की
बात हो रही है, वो फंस कल ही गए, वादे अपनी हो ही गया था ना, बातों में फोन में फंस चीजें गए, मांगने की बात हो रही है। अपनी ही बातों में फंस हैं? गए। तो मैंने अरे कहा ही वाह भाई। कब कि शिर्क है तुमसे मांगना। तुमको अच्छा, जिसको यानी तुम चाहो मुझसे मुशरिक मांगो, फिर बना अपनी दो, औलाद मांगो जिसको कि दिल अल्लाह मुझे औलाद दे। चाह, जिसको दिल चाह मुशरिक नहीं, बनाने मुझसे आए मांगो हो। तो भाई फैजान भाई औलाद दे दो मुझे। औलाद दे दो, अरे तुम्हारे देवबंदी तो जने किन किन से औलाद मांगते रहे, उसको छोड़ो। मैंने ये कहा आला हजरत की कहानी मैंने ये सुनाऊं? कहा मैंने ये कहा कि आला हजरत की अल्लाह के कहानी सुनाऊं कि अलावा अब्दुल वहाब वाली? औलाद पे मत जाओ। अभी मैंने तुमसे कहा, तुम कह रहे गैब में मांगना अभी शिरक है, इस तुमने पे कहा ना, दलील नहीं अभी बची तुमने तुम्हारे कहा पास। ना, सुनो सुनो। तुम्हारे पास अब तुमने दलील नहीं बोला तो बची। जवाब लेना पड़ेगा, पत्थर मारोगे तो ईंट लगेगी, ठीक है, इधर से भी। अरे शिर्क साबित करो, गैब में मदद मांगना है, इसकी दलील दो। तो वही तो बोल रहा हूँ, लौकाना फीमा आलियतुन इल्लल्लाहु इसमें तो लफसदता, है क्या ही नहीं, तर्जमा कहीं करो? इसमें है ही नहीं। तर्जमा क्या आ रहा है वो तो कर दो अभी तो पहले क्या यार। 10 पूरे दिन तर्जमा करता रहूं? 2 बार तो हो गया, एक बार तुमने कर दिया, एक बार मैंने किया, अब फिर से करूं? कहाँ तुमने किया? तुमने कहाँ किया? अच्छा ये बता दो, मैं तर्जुमा कर दूंगा, इसमें गैब में मदद मांगना शिर्क लिखा है? करो, तुमको समझाता हूँ मैं, अच्छा तभी ये तुमको समझ में बताओ आएगा, ये भी अच्छा ये समझाता हूँ। बताओ हाँ, शिर्क साबित करने के लिए कौन सी दलील वारिद होती है? शिर्क साबित करने के लिए कौन सी दलील की जरूरत होती है? शिर्क नहीं साबित किया जाता, शिर्क साबित नहीं किया जाता है, क्या तौहीद साबित की? साबित की जाती है। जो चीज तौहीद के मुनाफी हो वो अपने आप शिर्क होती है, पागल। अच्छा तो चलो ठीक है, चलो नाम एक क्या है काम आपका? करो, तुमने ये कहा ना अल्लाह से नहीं, नाम मदद बताओ मांगना। अपना। सुनो सुनो, तुमने कहा ना अल्लाह से मदद अरे मांगना भाई तौहीद नाम है, तो बता दो यार। तो इसका उलट कर दो, तुमने अपने बाप से मदद मांग ली तो ये शिर्क हो गया, क्योंकि तौहीद की सुनो सुनो, पहले अपना जिद नाम होती बताओ। है शिर्क। नाम नाम अमन अली कादरी, बरेली कहाँ शरीफ से हैं से, आप? बरेली शरीफ से। अरे सही से देखो, जब कुरान नाजिल हो रहा था ना, हाँ तो अल्लाह ताला को पता था कि 1400 साल बाद अमन अली कादरी बरेली शरीफ से पैदा होगा, जो कुरान का उल्टा मतलब निकालेगा, इसीलिए अस्तगफिरुल्लाह नस्तईनु का नहीं अस्तगफिरुल्लाह कहा अल्लाह ने। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सुनो कहाँ सुनो लिखा है ये? सुनो, पूरी बात अस्तगफिरुल्लाह बात नहीं ये करना। लिखा कहाँ है, पहले ये बताओ। कुरान में लिखा है। किस जगह बताओ, आयत पढ़ो। क्या अमन अली अल्लाह कादरी ताला को पैदा पता था होगा कि और वो तुम जैसा कुरान के आदमी, अंदर सुनो गलत वो बातें करेगा? पढ़ो, आयत पढ़ो। सुनो यार, अरे सुन तो लो यार अरे तो भाई। आयत पढ़ो ना फिर। हाँ, वही आयत ही पढ़ रहा हूँ, कि पढ़ो। वही बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला को पता था कि 1400 साल बाद अमन अली कादरी बरेली में पैदा होगा, कुरान का उल्टा मतलब हाँ तो निकालेगा। आयत पढ़ो चलो। इसीलिए अल्लाह ने नाबूद, नहीं नहीं, सुनो, ये इसलिए अल्लाह आयत ने पढ़ो, ये नाबूद, आयत पढ़ो, तुमने अल्लाह पे झूठ बांधा सुनो है, ये सुनो आयत सुनो, पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, अल्लाह फरमाता है, ये नाबूद अल्लाह का, फरमाता है अपनी अकलें दाखिल मत करो, जन्ने बातिल से काम मत लो। चलो आयत पढ़ो। ठीक है, और ये कि कुरान में लिखा हुआ है कि तुम मुझसे बात करो। लो, अब कहाँ से कहाँ भागे? अरे आयत पढ़ो, तुमने अल्लाह अब पे तुम झूठ कहाँ बोल से कहाँ आ गए हो? तुमने अल्लाह पे झूठ तुम कहाँ बोला। से कहाँ आ गए हो? तुम कहाँ से कहाँ आ गए? इन्नल्लाह हुवा अल्लाह को अल्लाहुल तो गयूब, ये अल्लाह पता ताला है, अल्लाहुल गयूब अल्लाह है, को तो ये तमाम गलत पता की बातें है, मालूम है, ठीक अल्लाह है। को तो ये पता है मेरे जो नेक बंदे हैं, हक वाले हैं, वो हमेशा हक पे रहेंगे। तुमने झूठ अल्लाह मतलब की तरफ तुम्हारे मंसूब कैसे कर दिया कि अच्छे हिसाब बंदे वो से, गुनाह करते होंगे, वो कुरान में अपनी राय दाखिल करते होंगे? तो आयत पढ़ो चलो। तुम्हारे तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे शेख तुम्हारे अब्दुल बस की कादिर नहीं है, जिलानी सुनो को पहले। तमाम चीजों हेलो, का इल्म है, अल्लाह अरे ताला को हेलो, नहीं है। हेलो, तुम्हारे हाँ बस की नहीं है, तुम वो हाँ, गैब वाली आयत पढ़ो चलो। वो नहीं अब पढ़ तुम्हारे पाओगे बस तुम, वही तो बोल झूठ रहा हूँ। बोल देते कल हो, एक समेट नहीं कल पाते। तुमने इतनी देर बात की, सुनो, कल इतनी लंबी बात की, झूठ आज बोल इतनी देते देर से हो, बात कर समेट रहे नहीं हो, एक पाते। आयत कुरान की नहीं पढ़ी है तुमने, तुमने एक आयत पढ़ी शिर्क पे? और शर्म तुमको अलग से नहीं आ रही है तुम्हें भाई। शर्म आ रही है कुरान में झूठ बोलते हुए? शिर्क शिर्क कर चलो रहे कम हो, से कम दलील सूरह दे नहीं फातिहा पा रहे सुना हो, दो यार, गैब में कि जिससे मांगना मुझे शिर्क लगे है। कि तुम हाफिज आलिम हो। अरे गैब में मांगना सूरह शिर्क है, फातिहा तुम्हें सुना दो शर्म आ कम से रही है कम, झूठ बोलते हुए? गैब में मांगना शिर्क है, कम से तुम्हें कम सूरह शर्म आ रही फातिहा है? सुना दो यार भाई, कम से अरे कम। तुम्हें शर्म आ रही है? गैब में शिर्क है मदद मांगना, इस पे दलील पेश कर नहीं पा रहे हो, उल्टा कुरान में झूठ और बोलते चले जा रहे हो, और तुम्हें शर्म आ तुमने रही कौन है? सा साबित कर दिया? वही तो मैं तुमको बोल रहा हूँ, चलो तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम कोई अरे आयत मेरे पेश करो समझ में जिसमें नहीं, लिखा तुम हो कि दिखा गैरुल्लाह दो से ना। मांगना शिर्क तुम नहीं है। गैरे गैरे आदिया अमूर गैरे आदिया में शिर्क है मदद देखो मांगना, सुनो, दिखा दो। ना तुम और ना तुम्हारी पूरी जरूरियत पूरी जुर्रियत को कयामत तक कोई चैलेंज आयत है, नहीं पढ़ नंगा सकती पुंगा जिसमें लिखा हो खुलना कि भी गैरुल्लाह चैलेंज से है। मांगना अगर शिर्क कोई नहीं है। एक दलील कुरान से पेश कर दे या हदीस शरीफ से कि गैब में मदद मांगना शिर्क है, मैं शिकत लिख के दे दूंगा। पूरी वहाबियत और देवखन्नासियत तुम को पेश करो चैलेंज है। आयत, आयत पेश करो, चलो काहे की पेश बिस्मिल्लाह करूं? करो, तुमने शिर्क साबित कर कि दिया। जिसमें लिखा होगा गैरुल्लाह से मदद अरे मांगना शिर्क तुमने नहीं है। शिर्क साबित कर दिया, आय तुमने शिर्क साबित कर दिया गैब में मांगना। तो मतलब तुम अपने मतलब बरेलियों मतलब को ऐसे क्यों मतलब रखा? को छोड़ो, शिर्क साबित करो। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, ये शिर्क साबित नहीं हुआ। कुल्ला कहाँ अमलिकु हुआ? लिनफ्सी दलील का पेश तर्जमा करो, करो, दलील पढ़ो चलो, कहाँ हुआ शिर्क साबित? तर्जमा करो तुम इसका, काहे का तर्जमा करो इसका है तुम। उसमें शिर्क लिखा हुआ? कुल्ला अमलिकु क्या पूरे दिन कुल्ला तर्जमा अमलिकु करता लिनफ्सी रहूं? एक नफ़अन बार वला तुमने दररा। कर दिया, एक बार मैंने कर दिया, पूरे दिन करूं? उसमें है ही नहीं कहीं गैब में लिखा हुआ मदद मांगना शिर्क है। चलो, समझने वाला आदमी हो ना, तो उसके लिए तुमने सूरह अपने फातिहा ही तुमने काफी अपने है। तुमने अपने अब्बा साहब को इला बना लिया उनसे मदद मांग मांग के। किससे? अपने अब्बू साहब को इला बना लिया गैब में मदद दलील मांग दो, मांग के।
दलील लो चलो। अरे भाई तुम ही तो कह रहे हो ना कि अल्लाह के अलावा किसी से भी मदद मांगना शिर्क है। क्या अल्लाह के अलावा दलील तुमने लो। और आलिया बना ली है मदद मांग के? आलिया क्या होता है भाई? ये देखो, इलाह की जमा आलिया क्या होता देखो है। क्या? तुम्हें हाँ ये क्या तक होता नहीं है? पता है? इलाह क्या की होता है आलिया? इलाह की जमा आलिया होता है, ठीक है। यानी कि आलिया होता बहुत है। से इलाह बना लिए, उनको आलिया भी कहते हैं। अब तो अब आलिया कहते अब हैं। क्या कहते हैं? अरे भाई जाके लुगत में देख लो कहाँ यार। पढ़े हो? मदरसे के पीछे पढ़े हो कि लुगत में मदरसे के देख लो अंदर पढ़े भाई। हो? कहाँ पढ़े हो? पहले ये लुगत बताओ, लुगत में जाके देख लो कि पहले ये आलिया बताओ, होता है कि पढ़ाई आलिहा कहाँ की होता है। है भैया? हेलो, पढ़ाई कहाँ की है? हेलो। हेलो नहीं, जाके देख लो। कहाँ पढ़ाई की है? मदरसे के ठीक अंदर? है, कम अच्छा से ये कम बताओ, कुरानी में देख लो। इलाह की जमा क्या होता है? आलिहा होती है क्या आलिया होती है? ये देखो, इतने बड़े बताओ। ये जाहिल साहब हैं और मैं क्या इंग्लिश बोल रहा हूँ यहाँ पर? तुम तो आलिया आलिया कर रहे हो। आलिया तो आलिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम होगा भाई। वो उसी को तो तुम यहाँ दोहरा रहे हो यार। मदरसा देवबंद में ये सब आती रही हैं, इंदिरा गांधी वगैरह, ये लड़की हैं सब वहीं से ताल्लुक रखती हैं, मुझे सब अब्दुल मालूम वहाब है। का किस्सा तो मैं सुना क्या? आलिया आलिया कर अहमद रहा वाला। हूँ, एक मिनट, आलिया आलिया कर रहा हूँ, हाँ नहीं लगा रहा हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला? बे सुना ही नहीं पड़ रहा भाई यहाँ पे। तो जब ज्यादा सुनाई ना पड़े तो इसका मतलब सामने वाले ने लगाया ही नहीं, खूब जाहिर हो तभी वो इसीलिए होता तुमने है। 3-4 बार बुलवाया। तुमने तीन हाँ, चार रिकॉर्डिंग मौजूद है यहाँ पे। ऐसा ऐसा नहीं है कि तो वो मैं ठीक है। वही कह रहा हूँ ना, हाँ अगर खूब हाँ। जाहिर हो तभी उसके अंदर माना जाता है, हाँ है वगैरह। अगर खूब जाहिर ना हो तो क्या नहीं माना जाएगा? जाहिल इंसान हो अरे बिल्कुल। भाई अरबी अरबी चलो अब अरबी इधर आ जुबान में जाओ, एक अरब की उधर तब्दीली भी से कुछ पता नहीं, है, कहीं ईमान कुछ से नहीं कर ईमान बन पाओगे, जाओगे। कहीं कुछ नहीं कर ठीक है। पाओगे। यहाँ और गैब में मदद मांगना शिर्क है, ये साबित करो। एक दलील तुम पेश करो, कम से कम कुरान की आयत तो पढ़ दो यार, कि मैं जिससे पेश लगे कर हाफिजी देता, हो तुम। मैं ईमानदारी से पेश कर देता, लेकिन तुम मुझे कयामत तक ये मालूम है, ईमानदारी का तुम सुनो पहले, बेईमानी को ही नहीं पेश कर सकते सुन कयामत तो तक लो, भाई। अरे सुन तो लो भैया, बोलो। आराम, थांबा थांबा। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी काम को जायज कहना और किसी भी काम को शिर्क कहना, इन दोनों में से बड़ा हुक्म है शिर्क वाला, क्योंकि उससे बंदा ईमान से हाँ। खारिज हो जाता है। तो पहले बड़े हुक्म हाँ की तो दलील वो लाजिम होती है, क्योंकि अगर जायज अच्छा ना ये भी हो तो बताओ। भी शिर्क सुनो साबित सुनो। नहीं होता, शिर्क की दलील देना पड़ती है। शिर्क की दलील दो, चलो शुरू हो जाओ। अच्छा ये एक बताओ बात और शिर्क है, किसकी नफी? एक बात और हाँ। है, एक बात ये है कि शिर्क तो होता हाँ। है बहुत बड़ा हुक्म, इसके लिए चाहिए नस्से कतई। तुमने कहा है हाँ। उमूर गैर आदिया, यानी कि गैब में मदद हाँ। मांगने को तुमने शिर्क कहा है, तो अब तुम्हें हाँ। गैब में ही मदद मांगना शिर्क दिखाना पड़ेगा कुरान से। चलो शुरू हो जाओ। तो हाँ, तो तुमने हाँ, क्या कहा कि वो कुरान में कोई वो नहीं मौजूद, ठीक है। हाँ नहीं तुम है। कल से एक आयत पढ़ नहीं पा रहे हो। अरे भाई साबित तो हाँ। तुम कर रहे हो, आयत मैं पढ़ूं, ये कौन सी बात है? और दूसरी बात ये है कि शिर्क जो है ये शिर्क तौहीद के मनाफी है। तो जो चीज कुरान में तौहीद का जिक्र है, जो चीज तौहीद के मनाफी है, वो अपने आप शिर्क हो जाएगी। वाह भाई वाह। लेकिन तुम्हारी भोंदी अकल में नहीं आएगा चलो भाई ये। ठीक है, अरे नहीं, मैंने इसका इनकार किया, तुमने बिल्कुल सही तो कहा। चलो अब ये। मैं मानता हूँ, अब मैं तुम मानता सुनो हूँ। सुनो। सुन लो, अरबी सुन लो, आती है आपको ना? अरे सुन तो अरबी लो, आती है। सुन सुनो तो सुनो, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का कम से कम तर्जमा कर दो। सु- कंजुल ईमान में देख लो खोल के यार। आहो, सुन लो ना, आप सुन लो। इन्होंने कहा नहीं, साहब ने, कंजुल ईमान खोल के तर्जमा तो देख। नहीं सुनो यार, लंबी बात ना बढ़ाओ, कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ भैया, कंजुल ईमान लंबी खोल नहीं के है, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का तर्जमा देख लो पहले। हो गई ना मेरी, तो सुन लो। इन्होंने कहा हजरत ने कि तौहीद के मनाफी शिरक होता है, यानी कि तौहीद की जिद शिरक होता है। हम भी मानते हैं हाँ। कि तौहीद की जिद यानी कि उसकी कहाँ पलट कर मानते हो दो तो तुम? ये तो फिर शिरक। गैरुल्लाह से खामोश क्यों रहो, मांग रहे हो? बात पूरी होने दो। अब मैंने इन्होंने कहा कि तौहीद की जिद शिरक होता है, मैं भी मानता हूँ, हम भी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इनसे ये कह रहा हूँ कि अल्लाह से मदद मांगना ये तौहीद है ना? यही तो कह रहे हो तुम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन तौहीद है ना? तर्जमा करो इसका पहले। हाँ, अल्लाह हम तुझ ही से मदद चाहते हैं, तौहीद हाँ। है ना ये? तुझ ही से मतलब क्या हुआ? तुझ ही से। हाँ, तौहीद हो गई है। ले, तो क्या हो गई? ये शिर्क हो गया। नहीं, हाँ तो करो, मैं इनकार नहीं कर रहा ना। शिर्क हो गया ये भाई, ये हाँ शिर्क हुआ। ही है ये। सुनो तो, ये तौहीद है ना? हाँ। हाँ या ना? हाँ। ठीक है। हाँ। तो अब ये बताओ, अब इसकी जिद शिर्क होगा, बिल्कुल सीधी सीधी बात, हाँ। किसी से भी मदद हाँ। मांगना। हाँ। हाँ, तो फिर तुम्हारे अब्बू से भी मदद मांगना शिर्क हो गया फिर। वो मोरे गहरा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल सही पॉइंट पे आए। अब मैं तुमसे यही कह हाँ। रहा हूँ कि अल्लाह ने कहाँ कहा कि उमूर गैर आदिया में अल्लाह से मांगना ये तौहीद है, और मुतलकन अल्लाह से मांगना ये तौहीद नहीं है। साबित करो, चलो, ये बताओ तुम। अस्तगफिरुल्लाह। सुनो सुनो, ये बताओ बरेलवी तो हनफी हो इय्याक या गैर नअबुदु व मुकल्लिद हो? इय्याक पहले ये बताओ। नस्तईन में मुतलकन मदद मांगना तौहीद नहीं है अल्लाह से?
ये बताओ बरेलवी हनफी हो या गैर मुकल्लिद हो? ये देखो अब कहाँ भागे ये नहीं बताओ, कहाँ तुम्हारे भागे? सवाल का जवाब है ये। अल्लाह से तुम्हारे सवाल का मुतलकन जवाब मदद है। मांगना तौहीद है या नहीं है, सहाबा ये को बताओ। मानते हो कि नहीं मानते हो? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह से मुतलकन सहाबा को मदद मानते हो कि मांगना नहीं, ये बताओ तौहीद है पहले। कि नहीं है? अब इसका जवाब दोगे। सहाबा को मानते हो कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। तफसीर इब्ने अब्बास जानते हो कि नहीं? हाँ जानते हैं। तो अब ये तफसीर इब्ने अब्बास में देख लो, उसी में लिखा हुआ है उमूर आदिया गैर आदिया की, वो समझे? ना ना उमूर नहीं, इसकी कहीं नहीं तफसीर इस लिखा, वजह करती है कहीं कि कहीं बाद नहीं लोगों लिखा। सुनो पहले, उस तफसीर पे पहली हाँ बात तो हमारा इख्तिलाफ है कि वो उनसे साबित है भी नहीं, फिर दूसरी बात वहाँ लिखा वहाँ भी नहीं है। अब मैं चलो आपसे ये चलो, कह रहा कम से हूँ, कम तुमने वो मैं एक ये चीज तो कह रहा हटाई, हूँ, एक अरे चीज वो तो खारिज अलग किया। तुम अभी बहस है, कुरान का भी इनकार करोगे, वो मुझे अलग पता है। बहस है कि इनकार तुम ठीक करते है, हो। अभी ये बताओ, जब तुम फंसोगे ना तो तुम कुरान भी गायब कर अरे दोगे। अभी फंसे तो अभी तुम वहां हो, फंसे, वहां फंसे तुम वहां हो, तफसीर तफसीर इब्ने पे अब्बास भाग को रहे हो। गायब किया। फंसे तुम हो, तफसीर पे हाँ, भाग रहे हो, लिखा वहां भी नहीं है। अब सुनो पहले, मैं ये कह तफसीर रहा किस हूँ, लिए होती है? अल्लाह से ये तफसीर किस लिए अल्लाह होती से अल्लाह से मदद मांगना, या का नाबुदु या का नस्तईन, अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तौहीद है। है? हाँ आपने अभी कहा, तो इसकी जिद हाँ शिर्क हुआ, तो यानी कि तुम्हारे हाँ, अब्बू से तुम्हारा मदद मांगना शिर्क हुआ। वो उमूर गैर आदिया है। अल्लाह ने कहाँ फरमाया इस आयत में कि उमूर गैर आदिया में अल्लाह से मदद मांगना तौहीद है? यहाँ लिखा है आयत में। भाई अल्लाह के नबी ने सहाबा की परवरिश अब क्यों वो की थी? नबी समझाने के सल्लल्लाहु लिए कि अलैहि कुरान क्या वसल्लम है पर तो क्या भागे, मतलब है। आयत को छोड़ दिया, हैं? अब उमूर गैर आदिया पे आ गए। अब अल्लाह से मदद मांगना तौहीद नहीं आयत है, नहीं, देखो कुरान तो अब तुम अल्लाह लोग से छोड़ते मदद हो, हम लोग मांगना पूरे तौहीद कुरान नहीं रहा। पूरे कुरान पे अमल करते हैं। अब अल्लाह से भाई ये मदद कुरान मांगना सहाबा तौहीद को नहीं नहीं समझ में रहा। आ रहा है, और उसके इस लिए अल्लाह आयत के पे नहीं नबी को करते, भेजा गया कि कुरान समझावे। इस आयत पे नहीं करते, इस आयत पे अमल नहीं करते। अब ये बताओ, जब अल्लाह से मदद मांगना तौहीद हो गया, मुतलकन है यहाँ पर, इसमें कोई गैर आदिया, कोई उसमें तशरी नहीं है, मुतलकन अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो अब इसकी पलट शिर्क हो गई ना। अच्छा ये बताओ, अल्लाह से तुम मुतलकन मदद मांगते हो कि नहीं? मुतलकन क्या? अल्लाह से हमें मुतलकन मदद मुतलकन मदद मांगी मांगने जाती है कौन कि ठीक नहीं? कह रहा है भाई? उमूर गैर मुतलकन मुतलकन मदद हाँ मांगी जाती है कि नहीं, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब ये तौहीद हो गया, ठीक है। तो तो अब ये हाँ, बताओ, अब इसकी जिद शिर्क हो गया, तो तुम अपने अब्बू से मदद मांग के मुशरिक हो गए। कुरान में अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, क्या आपस में कर्ज एक दूसरे को लो दो कर देना मदद नहीं है? मदद तो खुद अल्लाह ने जिक्र कर दिया। यानी अब इससे क्या तुमने पता इसकी चला कि ये तखसीस उमूर कर दी। आदियां हैं? अब यहाँ ये तौहीद की जिद शिर्क कहाँ गया फिर, जब यहाँ तखसीस हो हैं? गई, अब तुमने तखसीस कर दी। अभी तुम मुतलकन वहां पर शिर्क कह रहे थे और मुतलकन तौहीद कह रहे, अब तुम खुद ही तखसीस कर रहे हो कि नहीं नहीं, क्या? यहाँ से ये मायना होगा, वहां से वो मायना होगा, यहाँ गैब होगा, वहां जाहिर होगा, ये सब तखसीसें करते फिर रहे हो। तो अब इसी ना तुम तखसीस की हम तुमसे दलील मांग रहे हैं कि गैर ना आदिया में तुम लोग मदद सुनो, मांगना ये शिर्क है, इसकी दलील दे दो। वही तो बोल रहा हूँ, तफसीर इब्ने अब्बास में लिखा है, तफसीर अजीजी में तफसीर लिखा है। मैं वो कुरान में तफसीर नहीं जो जिसको लिखा, तुम तुम्हारे अब्बा भी मानते हैं। कुरान में नहीं ठीक लिखा, है, कुरान में नहीं लिखा। या वही वही ये आए। देखो दोस्तों, जब हम कुरान पे आते हैं तो ये तफसीरों पे भागते हैं, हम तफसीर पे आते हैं तो ये उलमाए किराम के अक़वाल पे दोस्तों को भागते हैं, छोड़ो, और जब हम उन पे आते हैं तो ये पता दोस्तों को नहीं छोड़ो कहाँ कि भाग तुम्हारे जाते अब्बा हैं। याद आएंगे। कल से तुमने एक भी कुरान की आयत पढ़ी नहीं है, बोल रहा हूँ तुमको सूरह फातिहा कम से कम सुना दो पूरी ताकि पता कुरान चले कि से तुम एक हाफिज ही हो। दलील दे दो, मूरे गैर इमामत करते आदिया में हो, मदद मांगना शिरक है, पूरे कुरान से एक दलील दे दो, एक इमामत दलील। करते हो, ये बताओ, इमामत करते हो? अरे मैं कुछ भी करता हो, तुम्हें उससे मतलब, मैं ये कह तो रहा हूँ मदरसे में कुरान पढ़ाते शरीफ हो से तुम लोग एक दलील दे दो जिसमें गैर आदिया में मदद मांगना यार। शिरक हो। ना मैं यही कह दूंगा कि हाँ चलो, मैं शिकस्त लिख के दे देता हूँ, मैं तुम्हारी मान ली, उन चलो एक लोगों को दलील। क्या गुमराह करते हो, क्या पढ़ाते हो फिर जब तुमसे कुरान की आयत नहीं पढ़ी जा रही? अरे भाई मैं क्यों पढ़ूं, तुमसे पढ़ी जा रही है, पढ़ो लोग शिरक वाली मैंने क्या आयत पढ़ी पढ़ो। है शिरक, कुरान की आयत नहीं है? इसके अंदर तो तुम झूठ बोल रहे हो बराबर। ये मैंने ऐसे, तुम पूरा झूठ? कुरान पढ़ दो, उसका मतलब तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई ये रहीम कुरान पढ़ की दूं। आयत है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अरे अल्लाह जो बोला इसका मतलब। मैंने भी तो पढ़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो क्या मतलब हुआ, हाँ, क्या मतलब हुआ उसका? शिर्क तमाम साबित हो गया या इस बात तमाम साबित तारीफ हो गया? अल्लाह के लिए है। अरे तुमने भी कुरान तमाम पढ़ दिया, तारीफ मैं अल्लाह भी के पढ़ लिए दूं, है। उसमें मतलब थोड़ी है। क्या? शिर्क साबित करो, शिर्क कौन सी आयत में लिखा है? तो चलो तुम ही एक आयत पढ़ के दिखाओ जिसमें लिखा हो गैरुल्लाह से मांगना शिर्क नहीं है, पढ़ो तो आयत। शिर्क हो तभी तो मैं पढ़ूं कि शिर्क नहीं है अरे शिर्क से साबित अरे करो। पढ़ तो दो भाई, पढ़ तो दो, कोई आयत तो अरे पढ़ दो तो तुम। शिर्क शिर्क है ही नहीं तो तेरी ही इबादत का क्या मतलब है? तुझ ही से मदद का क्या मतलब है? तुम बताओगे, तुम खुद नहीं मानते इस आयत को। तुम अभी गैर आदिया का फर्क करने लगे थे इसमें, जब अब्बू की बात आई मदद मांगने देखो की तो पहली गैर बात ये आदिया है कि का तुम फर्क कर रहे थे। बात पूरी सुनते गैर हो नहीं आदिया में तुम, मदद ठीक मांगना है? शिर्क है, ये साबित करो। बात पूरी तुम सुनते हो नहीं।
पूरी सुना दो। अच्छा, ठीक है। आज पूरी हाँ, सुना दो तुम। उसकी वजाहत की गई है। असल में तो यहाँ जो है ना, मदद का मतलब ही ये होता है कि उन चीजों में अल्लाह ताला से उन चीजों को गैरुल्लाह से मांगना जो अल्लाह से मांगी जाती है, और मदद का इस असल आयत मतलब में ही वो होता लिखा है जो है, कुरान में इस नबी आयत आई में है। लिखा है, वरना ये तो कुरान में अल्लाह ने इस तो आयत में खुद कहा, लिखा है। ताअवनु अलल बिर्रि ये वत्तक़वा देखो, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। हाँ, इस आयत में लिखा कुरान है। की आयत खुद बता रही है कि एक दूसरे का खैर और भलाई के कामों में ताउन करो। हाँ, अच्छा, यानी कि तुम तो इसके यहाँ कायल हो असबाब गए, थे, इसके तातल कायल हो असबाब, गए, ठीक है। यानी अल्लाह के अलावा यहाँ तातल दूसरी असबाब ताउन की बात हो रही है। सुनो जो सुनो, मा फौकल असबाब हंसी है की वो बात, अल्लाह हंसी ताला से नहीं, वो अल्लाह गैरुल्लाह से नहीं मांग सकते। हंसी की बात सुनो। अब ये अल्लाह के अलावा दूसरों से मदद मांगने की खुद दलील पेश कर रहे हैं अभी कह रहे शिर्क है। अब ये बताओ, अब तुमने कहा माँ फौकुल और माँ तहतुल की असबाब लगा दी, अब वहां माँ नहीं माँ होता है तहतुल भाई, असबाब तहतुल तुम नहीं कह होता रहे है, हो, तो अब ये बताओ माँ तहतुल नहीं फौकुल होता है, असबाब में तातल मदद होता है। मांगना शिर्क है, ये कहाँ लिखा है? चलो साबित करो। अरे भाई फौकुल नहीं होता है, फौकल होता है। हाँ चलो वही साबित करो, कहाँ लिखा है? हाँ, कम से कम 9 सर्फ तो यार पढ़ लेते कुछ भाई तुम। अरे मुझे ऐसा, तुमको ना कुरान मुझे आता है, तुम्हारे ना जैसा तुमको कुछ भी, लफ्ज़ आता है। सुन लो पहले, मुझे तुम्हारे जैसा नहीं बनना है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मुसलमानों को मुशरिक बोलूं बगैर दलील। तुमने ये जो अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी सुनो, ताबीलें की हैं जब तक कि ना, जाहिर में, कि सुनो सुनो गायब सुनो, में, कि यहाँ पर ऐसा कि जो चीज़ अल्लाह से मांगी जाए, ये सब जो तुमने किया है ना यहाँ पर, ये सब सुनो कुरान सुनो से सुनो दिखाओ। यार। चलो, अरे वो सब तुम्हारी छोड़ो, ये सुनो, तुम्हारी नहीं मानेंगे। सूरह जब तक बकरा की आयत नंबर 78 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अपने जब जन्ने तक ना, बातिल से काम ना लो, अपनी अकलें सुनो दाखिल सुनो, मत करो। चलो बताओ कुरान जब में कहाँ तक लिखा है? बरेली धर्म के अंदर ना, सुनो, अरे जब तक बरेली बरेली तो धर्म के अंदर आप जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, लोग। बरेली तो दीन को फॉलो करते हैं, देवबंदियों की तरह अरे थोड़ी। सुन तो लो यार, तुम्हारी बात सुनी ना मैंने, अब सुनो, कम से कम 1 मिनट तो सुन लो। मेरी बात सुनो, वो आयत पेश करो जिसमें गैब में फिर मदद अगर मांगना तुम्हारी शिर्क, बात वो सुन आयत ली है मैंने, तुम्हारे पास? सुन ली, अब मेरी सुनो, करता सुनाओ, हूँ बात, ठीक है। सुनाओ, सुनाओ। कि जब तक बरेली धर्म के अंदर तुम्हारे जैसे लोग जिंदा है ना, हम तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तुम जैसे लोग बरेली धर्म में जिंदा रहें, क्योंकि लोगों को भगाने का काम करते हैं कि जाओ मुसलमान बनो। अल्लाह का करम है, हम लोग के जलसे में, हम लोग की मस्जिद में जो पहले 3-4 जमात निकलती थी, 8-10 लोग आते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भरी रहती है। जलसा और वो क्या बोलते हैं, जलसा वगैरह और कॉन्फ्रेंस वगैरह और इज्तिमा वगैरह होता है, जहाँ पहले 1-1.5 लाख आते थे, अब 20-25 लाख लोग आते हैं। तो तुम लोग भगाते रहो सबको, इसका सब मतलब मुसलमान पता होते ये रहेंगे चला, बरेली धर्म से। इसका मतलब पता ये चला, पहले तुम लोग नहीं थे, अब नए नए पैदा हुए हो तुम लोग, और तुम लोग नहीं लोगों नहीं, को खींच खींच के अपनी पहले तरफ हम ला रहे लोग हो। थे, इसका मतलब ठीक ये हो है। गया, इसका मतलब ये हो या गया कि पहले, पहले तुम लोग नहीं थे, तुम्हारी कोई हकीकत नहीं थी पहले, फिर तुम नए पैदा हुए, फिर तुम लोग खींच खींच के लोगों को अपनी जैसा बना रहे हो। पहले कम ला रहे थे, अब ज्यादा लाने लगे। आवाम को जो भोली भाली, उन्हें कुछ पता नहीं होता, उन्हें ये आयत पेश की, हाँ, वो आयत पेश की, अपनी मर्जी दाखिल की और उनको गुमराह कर दिया। ये हरकतें होती है तुम लोग की। चलो साबित करो, चलो चलो अब हो गैब गया। में मदद मांगना अब शिर्क है, बोलूं, साबित करो, सुनो, सुनाओ। तुम्हारे अहमद रजा साहब से पहले ना, तुम्हारे बरेलवी मुजद्दिद से पहले तारीख तमाम पढ़ के दुनिया में देखो, यहाँ मजार थे पे बने नहीं है, हुए, तमाम दुनिया में मजार थे ठीक बने है। हुए उनसे पहले भी, मगर मदरसा हाँ, देवबंद कहीं नहीं था। मजार बनाना यहाँ पे शिर्क है, उनसे मांगना शिर्क है, ये अकीदा किसी किताब में नहीं था लिखा हुआ, आला हजरत से पहले और तुम्हारे देवबंदियों से भी पहले। हमारे हमारे नबी की मजार हदीस तो अल्लाह मौजूद थे, तक मजार मौजूद थे, सुनो, मजार मौजूद थे, मदद मांगने वाले भी मौजूद थे, लेकिन ना मदरसा देवबंद था और ना ही मजार पे जाके मदद मांगने वाला मुशरिक है, ये अकीदा किसी किताब में मौजूद था और ना ही कोई कहता था। ये बताओ जो इस्लाम मज़हब है वो नबी की तालीमात पे खड़ा है या आला हजरत के उस पे खड़ा है? नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पे ही खड़ा है, सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम का मजार बनाया। अब ये बताओ, उधर से मत भागो, गैब में मदद मांगना शिर्क है, इसकी दलील दो। चलो नबी अलैहिस्सलाम से दो, सुनो, सुनाओ। अब बोलूं, हो गया। गैब में मदद मांगना नबी, शिर्क है, इसकी दलील दो। रोवा राटिया मत सुनो, डालो। मिशकात शरीफ की हदीस है क्या है? कि कब्रों को इमारत ना बनाओ, उसका क्या करोगे? तो ला मत तत्तखिदू बनाओ ना कुबूर कब्रों पे बिना। इमारत, कौन कह रहा है कब्रों पे इमारत बनाओ? मत बनाओ, एट तो सेट से तुम्हारे आला बनाओ ना। हजरत की इमारत कहाँ बनी? अरे एट तुम्हारे सेट आए से बनाओ, एट सेट से बनाओ ना, और कब्रों पे मत बनाओ। ताली बजाओ कपिल शर्मा शो के लिए, एट कपिल सेट शर्मा से शो में बनाओ, जाओ कब्रों तुम। पे क्यों बना रहे हो? नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया, कब्रों पे क्यों इमारत बना रहे हो? एट सेट से बनाओ। इस्माइल दहलवी की तो अबे कब्र के इमारत ऊपर इमारत तुम्हारी बना ऐड डाली साइड है, से ही बनेगी ना। हैं? इमारत कहाँ से बनती है? ऐड साइड से ही बनती है। कब्रों पर तो नहीं होती, तुमको, फिर वो तुमने क्या एट सेट से समझा होती है। यानी सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक के जो इधर इधर जो इमारत बनाई थी, अस्तगफिरुल्लाह, वो गलत थी। कि सुनो, इमारत अस्तगफिरुल्लाह, बनाई थी नबी या बनी हुई थी अलैहिस्सलाम पहले के जो से? कब्र मुबारक के इर्द गिर्द जो इमारत थी बनी हुई, उनका मजार था बना हाँ, हुआ, तो वो गलत था, सहाबा ने गलत किया, अस्तगफिरुल्लाह। हो गया तुम्हारा, बोलूं?
اب یہ اس پہ دلیل دو کہ غیب میں مدد مانگنا شرک ہے، یہاں سے مت بھاگو، اس پہ پہلے دلیل دو بھاگا نہ کرو، ایک بات کا سوال کرتے ہو تو اس کا پہلے۔ جواب ہاں لے تو لیا کرو شروع پہلے۔ والا سوال ہے اس پہ آ جاؤ نا، غیب والا وہاں سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ نہیں میں یار، تو تم نے تمہارے جو سوال ادھر کر ادھر لیا نا، جواب اس کا تم بھی جو ہے، ادھر پہلے اس ادھر کا بھاگ جواب کے لو۔ سوال اٹھا رہے ہو، اس کا جواب دے بھاگ رہا ہوں کیوں نا میں رہے تو۔ ہو ادھر ادھر، ٹھیک غیب ہے؟ غیب کی دلیل دو، غیب کی دلیل، چلو شروع ہو نہیں جاؤ۔ نہیں، اب تم نے پہلے اس کا سوال کیا، اب جواب تم کو لینا میں نے پڑے گا۔ سوال نہیں کیا ہے، میں نے یہ تمہارے سوال کا تو جواب تم دیا ہے، نے کہا قبروں تو ہے پہ کہ محمد عمارت اللہ کے بنانے نبی کے والی ارد گرد بات کا گھمائی کیا جواب ہے اس دیا کا؟ ہے۔ اس کا جواب دو اب تم بھیا، کو نہیں ہلو، جواب دینا پڑے گا بھائی، ارے یہ ہلو، بتاؤ کہ اس کا جواب دو۔ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی جو جہاں دفن کیے گئے وہ ان کا کہاں، مطلب عمارت جو بنی ہے ہاں، وہ ہمارے نبی سے پہلے بنی کے بعد وہ میں بنی؟ عمارت ہوتی ہے، وہ قبر پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ابے بھائی، قبر نبی کی قبر اس عمارت کے اندر ہے، یعنی کہ قبر کے اوپر عمارت نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ قبر جو ہے اس کے ارد گرد عمارت ہو تو کوئی دقت نہیں ہے، قبر کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، نہیں، یہ پتہ نہیں چل پتا گیا؟ چلا، یہ نہیں پتا چلا، تو اس سے کیا یہ پتہ پتا چلا؟ چلا کہ عمارت میں اس سے یہ پتا چلا کہ عمارت میں دفن کر سکتے ہو لیکن اس کے اوپر عمارت نہیں بنا سکتے ہو۔ یعنی کہ ہم ولیوں کا مزار پہلے بنا کے رکھیں، پھر ان کو ان کے اندر مدفون کر دیں تو ٹھیک ہے؟ کیوں، کس نے کہا تم کو مزار بناؤ بھائی؟ بس گئے۔ تم کو مزار بنانے کے لیے کون نبی کہہ رہا علیہ ہے کہ مزار السلام کا بناؤ؟ ہمارے طریقہ، نبی تو کہہ صحابہ رہے کا ہیں طریقہ یہی ہے کہ اگر مزار ہو بنا ہوا پھر اس کے اندر مدفون کیا جائے، جیسے نبی علیہ السلام کو کیا، صحابہ نے کس تو طرح ایسا بنایا تو طریقہ یہ ہم بتاؤ۔ اختیار کر لیں تو صحابہ کی سنت ہو گئی کہ پہلے ہم اولیاء کا ارے مزار بنا بھائی، لیں پھر اس کے بعد ان کو اس میں مدفون کر دیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ کون کہہ عمارت رہا والی ہے، دلیل کون تو کہہ رہا ہے تمہاری تم کو ختم مزار ہو گئی، بنانے کے؟ عمارت والی بات تو تمہاری گئی پانی لینے، کہ قبر کے اوپر ہی ہے وہ عمارت جو ایٹ سائڈ سے بھی ہوتی ہے، وہ تو پانی لینے چلی گئی۔ اب مجھے یار اس کی دلیل دو، اس کی تم جو ہے دلیل نا، دو، غیب میں سنو، مدد مانگنا شرک ہے، اس کی ایک دلیل دے دو، امور غیر عادیہ میں غیب میں، چلو سٹارٹ۔ یہ کیا تھا، یہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، یہ کیا تھی؟ تم ایمانداری سے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دو کہ اس میں غیب میں مدد مانگنا شرک ہے کس میں؟ جو تم نے آیت پیش کی تھی؟ تو چلو اچھا، تم پہلے یہ بتا دو تم کون سا مدد مانگنا مراد لیتے ہو، یہ بتاؤ چلو۔ ابھی تک تمہیں یہی نہیں پتا چلا؟ ہم وہی مدد مانگنا مراد لیتے ہیں جو تھانوی نے لیا تھا، یا رسول کون سا؟ کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لیا تھا کہ دستگیری کیجئے پیارے نبی، کشمکش میں ہوں تم ہی میرے نبی۔ ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ ان کی ہے، علامہ ان کی جو تھانوی کے پیر ہیں، جو نام ذہن سے پھر سے نکل گیا، اور ایک چلو تھانوی کی بھیج ہے، دو میرے ٹھیک ہے؟ سے، دونوں میں کیا ہے؟ بھیجو۔ دستگیری کیجئے پیارے نبی، اور دوسری میں ہے آ، پھر وہ نکل گیا، ہاں، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے یا رسول کبریا فریاد ہے۔ ان دونوں میں سے ایک مطلب ایک تھانوی کی ہے، ایک اس کے پیر کی ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر ہاں مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، ٹھیک ہے؟ یہی مراد ہم لیتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری مدد فرمائیے، اور یہی ان لوگوں نے بھی کون سی لیا، مدد، کون سی مدد بتاؤ تو۔ یہی کہ دستگیری کیجئے پیارے نبی، یعنی دستگیری ارے یعنی مدد، دستگیری مدد ہوتا ہے، کون ہاں، سی مدد مراد لے رہے ہو یہ تو بتاؤ۔ کوئی سی بھی مدد ہو، غیب میں تو مدد مانگنا شرک ہے نا تمہارے نزدیک، تو جو کوئی سی تھانوی نے مطلب لیا ہے، واضح مثال سے واضح کرتا ہوں کہ یہ مانگ سکتے ہیں، یہ کیا مطلب، مثال دو۔ اگر کوئی بھی مدد مانگی جائے نا تو اچھا یہ بتاؤ، نبی علیہ السلام سے مطلقاً غیب میں مدد مانگنا شرک سمجھتے ہو نا تم، ارے بھائی یار، یا مطلب یہ شرک کم سے کم سمجھتے اپنا ہو اپنا کہ مان لو علم اپنا مانگ لیا مدعا تو جائے واضح کرو۔ کچھ اور مانگنا وہ شرک ہے، تم مطلقاً ارے شرک اپنا سمجھتے ہو؟ مدعا، اپنا مدعا تو واضح کرو، ہو سکتا ہے سامنے والا آپ کی بات سن کے سمجھے بھائی، تو مثال دو ایک آدھ۔ میں واضح کر دیتا ہوں، دستگیری کیجئے پیارے نبی، کشمکش میں ہاں ہوں میں تم ہی ہو میرے نبی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہماری مشکل کو، ہماری کشمکش کو حل کیجئے، یہ مدد ہم مراد ہاں، لیتے ہیں۔ اب تم بتاؤ، اس سے کون سی مدد مراد ہے، یہ تو بتاؤ کون سی ہماری مدد مراد ہے۔ مشکل، ہماری کشمکش، پریشانی، ٹینشن، ٹرسٹ، یہ سب ختم ہو، اس لیے ہم پکار رہے ہیں، یہ والی مدد۔ پریشانی تو بہت ساری ہوتی ہے، پریشانی یہ بھی ہے کہ مجھے کٹ جائے، اچھا پریشانی یہ بھی ہے کہ میری اولاد فوت ہو جائے۔ کون سی والی پریشانی کو تم ناجائز کہتے ہو؟ پھر ہم تھوڑا، ہمیں بھی واضح ہو جائے۔ تم یہ بتاؤ کون سی والی پریشانی کو تم جائز کہتے ہو، تاکہ تم کو سمجھانے میں آسانی ہو، ورنہ تمہارے سمجھ میں قیامت تک نہیں آئے گا۔ اب پریشانی تو سبھی طریقے کی ہوتی ہے، ہم تو سبھی پریشانیوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ یعنی سب، یعنی اگر اولاد مر جائے تو اس کے لیے بھی کیا؟ نبی سے وہ کرو گے کہ اولاد زندہ کر دے میری؟ تو یہ تو اللہ سے بھی نہیں کرتے کہ ہماری اولاد زندہ کر دے۔
चलो अच्छा ये नहीं करते, हाँ, जमीन में बारिश नहीं हो रही, कैसे सारी पड़ी है, ये भी अल्लाह से नबी से मांगोगे कि जैसे अल्लाह के नबी सहाबा बारिश नबी कर दो। अलैहिस्सलाम से मांगा करते थे, हम भी मांग लेंगे, क्या मसला है उसमें। साहबा ने नबी से कहाँ मांगोगे बारिश करवा, बारिश कर दो। हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु को लेके उनके वसीले से और उनसे दुआ करवाई कि आप दुआ करें कि बारिश हो। वसीला और मदद एक ही चीज होती है क्या? हाँ, तो हम भी ऐसे ही करवाएंगे ना नबी अलैहिस्सलाम से, क्या मसला तो है। वसीला और मदद एक ही चीज होती है। वसीला और मदद अलग अलग होती है ना, तो हम भी नबी हाँ अलैहिस्सलाम तो से अगर कोई शख्स ये अर्ज कर दे, ए रसूल अल्लाह कहत साली पड़ चुकी है, आप अल्लाह से दुआ करें कि बारिश हो, तो इसमें क्या बुराई है। दुआ करें, हाँ दुआ करें, वहाँ हाँ, पे अल्लाह के नबी मौजूद है, दुआ करेंगे तुम्हारे लिए। अच्छा अच्छा, तो ये थानवी साहब ने जो ये कहा है कि दस्तगीरी कीजिए प्यारे नबी, मैं कश्मकश में हूँ, तुम ही हो मेरे नबी, तो फिर तो ये क्या ये हो गया। कहाँ था तो तुमने अब भी तो बताया? नबी अलैहिस्सलाम वज़ाहिर मौजूद नहीं है। सुनो सुनो, वो हाँ क्या बोलूं, हाँ, बोलो हमारा ये अकीदा है क्या। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा हैं। हाँ, पूरी बात सुनना, बीच में मत बोलना, ठीक है? चलिए सुनाइए। इसलिए जब हम मदीना शरीफ जाते हैं, नबी के रोजे पे जाते हैं, तो हम वहां जाके सलाम पेश करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, हाँ ठीक है? हाँ, और जब हम यहाँ हिंदुस्तान में बैठे होते हैं, तो हम बोलते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, ठीक है? हदीस में है कि जब दूर दूर दराज से वो फरिश्ते गश्त करते रहते हैं, जब दूर दराज कोई मुझ पे दुरूद भेजता है तो फरिश्ते मुझ तक लेके आते हैं, तो यहाँ से हम भेजते हैं अल्लाह के नबी के पास, वो पहुंचता है, फरिश्ते लेके जाते हैं, और जब वहां होते हैं तो या रसूल अल्लाह कहते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल वहां मौजूद हैं। तो थानवी साहब ने वहां पे जाके कहा है ये दस्तगीरी कीजिए, ये लेकिन दरूद है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। एक मिनट एक मिनट, दस्तगीरी कीजिए प्यारे नबी, ये दरूद है। क्या दरूद पुकार है, सलाम ये है, पुकारना है, अब तुमको पुकारना। तुमने छेड़ा ना, तुमको अहमद रजा का सलाम करता हूँ। सुनो सुनो, पहले दस्तगीरी कीजिए सुनो प्यारे सुनो, नबी, नहीं कश्म में हूँ मैं, तुम ही हो मेरे नबी, ये दरूद है, ये तो पुकारना है। सलाम किसको बोलते अगर हैं? थानवी ने वहां जाकर भी पुकारा है, पहली बात आपको इसकी दलील देनी पड़ेगी कि वहां जाकर पुकारा है। चलिए वहां जाकर भी पुकारा है, तो ये दरूद कहाँ हुआ, ये तो पुकारना हुआ। तो आपके उसूल के मुताबिक कि हम खाली दरूद पढ़ते हैं, तो वहां से तो नबी अलैहिस्सलाम सुन लेते हैं, दूर से हम पढ़ते हैं तो फरिश्ते पहुंचाते हैं। इसी उसूल के मुताबिक भी थानवी साहब जो है तुम्हारे, वो मुशरिकी साबित हुए, क्योंकि उन्होंने दरूद नहीं पढ़ा है, पुकारा है। चलिए अब ये बताइए, आप कौन सी परेशानी में नबी अलैहिस्सलाम को पुकारना जायज समझते हैं गैब में, उमूर गैर आदिया में, और कौन सी परेशानी में शिर्क समझते हैं, ये बता दें। हाँ, तो तुम ये कह रहे हो कि कहाँ से ये साबित है कि वहां पे उन्होंने पढ़ा, ठीक है? अबे भाई, ये तुम्हारा ये अकीदा है कि नहीं कि रसूलुल्लाह जिंदा है? अरे चलो हम मान लेते हैं कि वहीं जाके उन्होंने पुकारा, तो अब भी तो उन्होंने हाँ। कोई दरूद थोड़ी पढ़ा है, ये तो पुकारा है नबी अलैहिस्सलाम। अबे यार, कुरान तो तुम लोग को कुरान से कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारा कोई है, वास्ता नहीं, दूर दूर का। फंस जा रहे हो तो कुरान की आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू, हाँ, सलात और सलाम दोनों है। अच्छा, यानी कि देखो जनाब, यहाँ कितना अच्छा हुआ, इन्होंने खुद ही दलील दे दी कि नबी अलैहिस्सलाम के पास, नबी अलैहिस्सलाम के पास वहां जाकर पुकारना ये जायज है, ठीक है, हो गया। हाँ, दांत ना निकालो, अब तो तुमसे ना एक कुरान की आयत पढ़ी गई, सुनो पहले, ना एक हदीस पढ़ी गई, इन्होंने खुद ही ठीक है? साबित बस कर दिया। अपने चलिए चलिए, रुकिए, तुमने यहाँ ये अभी इस पे हाँ भी की है और ये साबित कर दिया कि नबी अलैहिस्सलाम को वहां जाके पुकारना भी जो है जायज है, और दरूद शरीफ पढ़ना भी वहां जाके वो भी जायज है। चलिए, वहां ही जाके पुकार सकते हैं, यहाँ से नहीं पुकार सकते। चलिए ठीक है, आपने कहा कि वहां जाकर पुकारना ये जायज है। तो दोस्तों, आज से कोई देवबंदी ये ना कहे कि नबी अलैहिस्सलाम को वहां जाकर भी पुकारना ये नाजायज है, या मजार पे जाके पुकारना ये नाजायज है। चलिए सुने, अब आगे का जवाब दे, अब आगे का। अच्छा ये बताओ, वहां जाके जब पुकारा जाता है, तुम कह रहे हो ये जायज है, तो अब ये बताओ, वहां जाके पुकारना उमूर गैर आदिया में नहीं है क्या? वहां मजार शरीफ पे जाके पुकारना ये उमूर गैर आदिया में है कि आदिया में है? तुम्हारी समझ में इतना आ जाता ना, तो समझा दो यार, हम तो वही समझने बैठे हैं। तो तुम्हारा मसला ही हल हो जाता, तुम्हारे यही समझ में नहीं आने वाला। क्या मैंने कल क्या कहा था कि उमूर गैर आदिया के अंदर जो है ना, हाँ, उमूर गैर आदिया के अंदर हम किसी भी सूरत हम गैरुल्लाह से मदद तलब कर ही नहीं सकते। आदिया की तारीफ करो, आदिया किसे कहते हैं? मुझे पता, तुमको नहीं पता होगा, पहले बोलो मुझे पता नहीं है, फिर करूंगा। क्यों करूं? मतलब जो बातें तुम करोगे पहले उसकी तारीफ मैं करूंगा। हाँ, बिल्कुल। मतलब तुम्ही ने तो कहा ना उमूर गैर आदिया, तो उसकी पहले मैं तारीफ करूं फिर तुम करो। मैं तो कुछ इल्म होना चाहिए ना।
कुछ बताओ इल्म बताओ, होना गैर चाहिए कि बस ऐसे ही आदिया बात किसे करे। कहते हैं? आदिया किसे कहते हैं? कि आला हजरत मुर्दाबाद करके नारा लगाने के लिए चले अस्तगफिरुल्लाह, आए यहाँ ये पे। देखो, पहले ये बताओ गैर आदिया किसे कहते हैं? अभी मुर्दाबाद कौन है, पहले बताओ, अभी तुम पहले ये साबित हो बोलो कि जाएगा। मुझे पता नहीं है, फिर मैं करूंगा। आदिया किसे पहले बोलो कहते मुझे हैं? नहीं पता है। तुम्हें मालूम है? बोलो मुझे नहीं पता है। अरे मैं तो बोलो मुझे तुमसे नहीं पूछ पता। रहा, अरे तुमने कहा है तो तुम्ही से तो पूछूंगा। आदिया नहीं, बताओ चलो। पहले तुम बोलो मुझे नहीं पता, फिर मैं अरे बताऊंगा उसका आदिया मतलब। किसे कहते हैं वो बताओ भैया। पहले बोलो नहीं पता है ना। अब ये हुज्जत कर रहे हो तुम। मैंने तुमसे ये कहा कि मैं हुज्जत यहाँ नहीं हुज्जत है, करने आया हुज्जत हूँ नहीं है तुमसे। ना, तुमको कुछ पता ही नहीं है भाई। मैं तुमको पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, मुझसे पढ़ना है अगर तुम मेरे पास आओ। मैं तुमको यहाँ पढ़ते फोन पे नहीं पढ़ते पढ़ाऊंगा बैठ के एक एक चीज। ये हमें पढ़ा रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते नबी अलैहिस्सलाम के रोजे मुबारक पे जाके मदद मांगना जायज है, यहाँ तक पढ़ा चुके हैं हमें ये। हाँ ठीक है। और मैं पहले कह तुमको रहे थे यहाँ कि गैब में यहाँ मांगना शिरक है, और अब पढ़ते पढ़ते वहां मजार पे जाके मांगना वो जायज पे आ चुके हैं ये। और पढ़ाएंगे तो अभी इंशाल्लाह देखो कहाँ कहाँ जायज हो जाता है। अरे भाई तुमको तुमको ये अभी तक पता ही नहीं मदद से क्या मुराद है। तुम उमूर आदिया गैर आदिया का तुमको फर्क नहीं पता, और आके तुम्हें मुझसे कैसे पूछ रहे पता? हो। वही मुझे तो नहीं बोल रहा पता। हूँ तुमको। तुमने कहा है तो गैर बोलो आदिया में तो मदद मांगना चलो शिरक बता है, तो दो ना। तुम ही तो अगर बताओगे कि अगर आदिया पता है गैर तो बता आदिया की दो। तारीफ क्या है। अगर पता है तो बता दो, चलो बिस्मिल्लाह करो। तुम बताओगे भैया ये तो। अरे भाई तुमने कहा लो है, मैं बताओगे तुम। लो अभी। हाँ बताओ। अब मैं जो जो बोलूंगा सब चीज करूंगा मैं। हाँ बताओ। उर्दू ही है ये, उर्दू ही है। उर्दू नहीं आती तुमको? अरे भाई मैंने तुमसे क्या पूछा? तुमने कहा था ना कि उमूर नहीं गैर बोला ना, आदिया में मदद उर्दू ही मांगना है जो क्या? है वो शिरक है। तो अब तुम ही तो बताओगे ना उर्दू कि तुमको समझ में आदिया नहीं गैर आती क्या? आदिया किसे कहते हैं। उर्दू समझ में नहीं आती है? मतलब तुम बता क्यों नहीं रहे हो? कि यहाँ हुज्जत करने बैठे हो कि खाली नहीं कि बोलो ये मुझे करो नहीं वो पता, करियो? बताऊंगा ना बता ध्यान दो से। क्या आप बोलो मसला नहीं है। पता, बताऊंगा मैं। वो तो नहीं पता मुझे। क्यों बोलूं मैं नहीं पता है? मैंने की है ना इसकी मुझे पता तारीफ जो क्या मैं मसला बोलूं। है, सुनो सुनो। अजीब बात मुझे कर रहे पता हो। क्या मसला है। क्या मसला है? मुझे पता क्या मसला है। मुझे वही मसला है जो तुमको इसमें मसला है कि तुम एक भी आयत बता नहीं रहे हो कि गैरुल्लाह से मांगना शिर्क नहीं है। तो मुझे वही मसला है। अरे भाई तुम्हें ये मसला होता तो हम इसका जवाब देते, लेकिन तुम्हें मसला नहीं है। तुमने कहा ये मसला शिरक है। है। अगर मसला मसला होता है, तो जवाब हम दो भाई। जवाब देते, लेकिन मसला तुमने है, शिरक जवाब कह दो दिया ना। है, तो अब शिरक की पहले साबित करो, फिर उसके बाद आगे की बात होगी। अब पहले ये मसला है, बताओ। तुम कह रहे हो कि तुम्हें मसला अब होता ये तो मैं जवाब देता। अब मुझे अब मसला है तो जवाब दो ना। अब बात यहाँ आ चुकी है कि मजार पे जाके मांगना गैब में ये शिरक नहीं है। अब यहाँ मजार कहीं और है, तुम कहीं गैब और में हो, कुछ वहां नहीं, से गैब में मांगना कुछ नहीं शिरक था। है ना। रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। गैब 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 का अपनी तरफ से इजाफा ना किया अगर तुम लोगों ने कुरान में तहरीफ की। अब यहाँ अस्तगफिरुल्लाह, बात में भी सारी तहरीफ कर तारीफें रहे हो। यहाँ करने के रिकॉर्डिंग बाद हम पे मौजूद है। इल्जाम लगा रहे हो, सारी तारीफें करने के बाद, हैं? और तारीफ कर भी नहीं पाए तुम, कंजुल ईमान है क्योंकि तुम्हारे पास? अल्हम्दुलिल्लाह हम कंजुल मौजूद थे ईमान है? वहां पर। कंजुल ईमान है चलिए ये तुम्हारे बताइए पास? गैर नहीं आदिया में। सुनो, अब बात लो। तुमने सुनो सुनो। हाँ अब भैया। तुमने सवाल किया, जवाब लेके जाओ। हाँ कंजुल ईमान है तुम्हारे पास? हाँ है हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी का तर्जुमा देखो क्या किया तुम्हारे आला हजरत ने। क्या किया? देखो खोल के क्या किया अरे कि बोल तुम रहा है तो बताओगे मेरे क्या पास। किया? सब कुछ मैं ही बताऊं? गैर आदिया आदिया भी मैं बताऊं, गैब भी मैं सब कुछ बताऊं, तुम क्या बताओ? दलील भी मैं तुमने तो बताऊं? कुछ भी नहीं तुम बताया खाली भाई। मुशरिक बोलते सब रहो कुछ तो बैठे मैं बता बैठे। रहा हूँ। तुम खाली ठीक है। मुशरिक बोलो बैठे बस बैठे, और सब पहली चीजें मैं बात तो ये बताऊं। है कि तुमने अपने आप को तुम आलिम होने का दावा कर रहे हो। अब मैंने कुरान की कहा आयत किया पेश कर दी आलिम होने तर्जुमा। का दावा? ही कहाँ किया मैंने? कब? झूठ बोल रहे हो, ये यहाँ भी बरेली शरीफ झूठ, से फारिग सब हो जगह गया झूठ, तुम हैं? यहाँ भी झूठ बोल बरेली रहे हो। शरीफ से फारिग हो, ऐसे ही फारिग हो गए क्या? मैंने कब कहा मैं बरेली शरीफ से फारिग हूँ? फिर झूठ बोल रहे हो। तो तुम मतलब मुंह उठ के चला, तुम क्या हो फिर? तुम क्या किए? तुमने क्या पढ़ा लिखा है ये बताओ पहले। चलो अरे हमने जो कम भी से कम पढ़ा ये लिखा आलिम। हो, लेकिन तुमने नबी अलैहि सलाम के रोजे जो भी नहीं मुबारक है, पे जो मदद भैया मांगने को देखो, जायज कह दिया है। लोग हिंदुस्तान के अंदर हंसेंगे ना तुम्हारे ऊपर। लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। देवबंदी हंसेंगे हिंदुस्तान कि के अंदर, अच्छा चलो ठीक है, ये बताओ तुम हिंदुस्तान आलिम के हो? अंदर सुनो, तुम आलिम हो? हिंदुस्तान के अंदर विदेशियों की तादाद पता कितनी है? तकरीबन 1 लाख से ज्यादा है। मैं रोजाना ऐसे ही किसी जाहिल से पकड़ के बहस करते रहूंगा। किसकी जब किसकी तुम आलिम कितनी नहीं हो तो कितनी फिर क्यों आए यहाँ पे? तादाद कितनी है किसकी? बरेलियों की तादाद लाखों में है तकरीबन। और देवबंदियों की? वो देवबंदियों की छोड़ो, अब मैं लाखों से क्या हरदम बहस करते रहूंगा? देवबंदियों की देवबंदियों की छोड़ो, तुमको देवबंदियों से क्या लेना देना? मैं कौन मुट्ठी सा भर है तुमको ना, कह रहा कह हूँ दो तुम ना, आके देवबंदी मुट्ठी काम भर करो? है। कह दो मुट्ठी भर है। हैं? पहली बात ये है मुट्ठी कि भर है। बरेलवियों की तादाद यहाँ लाखों में नहीं करोड़ों में है। दूसरी बात, वो तुम्हारी देवबंदियों की तादाद यहाँ पर मुट्ठी भर है, क्योंकि 1857 के बाद पैदा हुए। अब मेरी बात देखो, सुनो, ये बताओ तुम तुम्हारे आला आलिम हजरत की हो? पैदाइश कब तुम हुई है? आलिम हो? तुम आलिम तुम्हारे हो? आला हजरत की पैदाइश कब हुई? तुम आलिम तुम्हारे हो? आला हजरत की पैदाइश कब हुई? तुम आलिम हो? तुम ये बताओ, बताओ। तुम आलिम हो? तुमको तुम तर्जुमा नहीं आलिम आ रहा हो? है। तुमको उमूर आदिया गैर मुझसे आदिया पूछ नहीं रहे पता हो, है, और तुम आके मुझसे मुझसे पूछ मुझसे रहे हो पूछ आलिम हो? रहे मुझसे पूछ रहे हो तुम आलिम हो?
कुरान की आयत मैं पढ़ रहा हूँ, तुम कुरान का आलिम तर्जुमा हो, मैं कर रहा हूँ। आयतों में तो झूठ बोल रहे हो तुम, आयतों में झूठ बोल रहे हो, तुम आलिम हो? तंगुल ईमान है तुम्हारे पास? अरे रुको रुको, पहले ये बताओ आलिम हो तुम? तर्जुमा जाके देखो। ये खुद तुम को बताओ, आलिम नहीं तुमसे बता कोई पा रहे, ये देखो आलिम हो? आलिम सुनो, आलिम बताया नहीं जाता है, आलिम साबित किया जाता है। मैं साबित कर रहा हूँ भाई, कुरान की आयतें तुम पढ़ के उसका आलिम हो, तर्जुमा करके। तुम हो आयत पढ़े आलिम, हो कल तुम से? हो आलिम, तुम हो आलिम, हाँ या ना? कल से एक भी आयत पढ़े तुम हो? आलिम हो हाँ या ना? तुम आलिम हो हाँ या ना? आलिम बताया जाता है कि साबित किया जाता है, ये बताओ। तुम चलो, हो, अच्छा ये बताओ, तुम अपने आप को आलिम साबित कर रहे हो ना, हाँ या ना? कोई कहे कोई कहे कि मैं आलिम हूँ, आलिम कहने से आलिम हो जाएगा? तो तुम पढ़ लिए, आलिम की उसको डिग्री कुरान का हासिल की तर्जुमा ही तुमने? नहीं आता, आलिम की डिग्री उसको हासिल कुरान का की? तर्जुमा ही नहीं आता, उसको अरे उमूर ये आदिया देखो, गैर आदिया अपने नहीं आप को पता, वो आलिम अपने नहीं आप को बता पा रहे और मुझसे कह रहे हैं कि मैं गैर आलिम से कैसे बहस कर लूं, लाखों लोग हैं मौजूद, बताओ आलिम आलिम बताया नहीं जाता है भाई, आलिम बताया अरे नहीं जाता है, वो आदमी के यानी कि तुम साबित किया जाता है, खुद पता चल जाता है। यानी कि तुम ना तुम आलिम कल, नहीं हो, तुम बता नहीं रहे हो लेकिन हो तुम आलिम, यही है ना? और तुम बताओ। तुम बता नहीं रहे हो चलो लेकिन तुम तर्जुमा आलिम कर हो, दो, यही है ना? तर्जुमा कर दो, चलो। अच्छा, अरे तुम बता नहीं रहे देख हो के कर लेकिन दो, तुम आलिम हो, यही बात है ना, हाँ या ना? देख के कर दो, मैं तुमको तुम्हारे आला हजरत की अरे तहरीर मैं जो दिखाता कह हूँ, रहा हूँ ना, कंजुल मेरी ईमान तो देख के सुनो, कर दो। तुम बता नहीं रहे हो क्या? लेकिन तुम आलिम हो, यही बात है ना? और तुम आलिम हो? देखो दोस्तों, कोई ये मत कहना कि हम किसी देवबंदी जाहिल से बात करते हैं, ये आलिमों के भी यही हाल होते हैं, इनके जो आलिम होते हैं जाहिल होते हैं सब बराबर होते हैं। और तुम इन्होंने अपना बताओ तुम। अशरफ थानवी को क्या कहा, अशरफ थानवी के चक्कर में इन्होंने सिस्टम ही चेंज कर दिया, अशरफ थानवी के चक्कर और में तुमने इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के और रोजे तुमने मुबारक अपने पे मदद मुजद्दिद की मांगने को जायज अपने कह दिया, तुमने सुनो, थानवी को बचाने अपने के तुमने चक्कर में। तुमने अपने मुजद्दिद इन्हें के नबी चक्कर में अलैहिस्सलाम से तुमने क्या क्या कर दिया, मतलब तुमने नहीं कब्र है, पूजा शुरू थानवी कर के दी, और चक्कर पता में नहीं क्या कुछ क्या भी बहाना कर शुरू सकते कर हैं, दिया किसी भाई। भी हद तक जा सकते हैं ये लोग। और तुमने आला हज़रत अच्छा के ये चक्कर में बताओ, क्या किया अब है, देखो ना। एक आयत पेश कर दो कि मजार पे जाके मांगना ये गलत नहीं है और मजार पे जाके दूर से मांगना ये शिर्क है, एक आयत पेश कर दो चलो भाई तुमसे जो है ना, इसी सवाल की उम्मीद थी। आप बिल्कुल करेंगे यह भैया, तमाम, तारीफ ही सुनो, तुम कर रहे हो, सवाल तो हम करेंगे न, फरियाद तुम जो करते। गैर नबी है, सुन सुनो, लो सुन अरे लो लो, सुनो यार, सुन लो पहले सुन बात लो सुन लो, सुन लो, बीच में बोलते हो यार। नयो फितने करते तुम, नयो फरियाद हम करते, नयो खुलते तुम राज कितने ही शरबस्ता, फैलाओगे, तुम्हारे ना तुम्हारी ही रुसवाई होती। तुम कितने ही फैलाओगे, इसके अलावा तुम्हारा और कोई काम नहीं है, ठीक है? ये बताओ, नबी और गैर नबी दोनों बराबर हैं? गैर नबी भी अपनी कब्र में जिंदा हैं? एक आयत पेश कर दो कि दूर से मदद मांगना शिर्क है, चलो। ये बताओ, गैर नबी अपनी कब्र में जिंदा है? कहते ना, मैंने अपने सवाल में कहा फंस कि गए ना। मजार शरीफ पे मदद मांगना सवाल किया है जायज ना है, तुमने, दूर से मदद मांगना शिर्क है, इस पे एक आयत पेश करो, चलो। इधर उधर मत तुमने भागो, अभी बहुत सवाल जगह किया है। भाग चुके नहीं हो नहीं तुम। नहीं, अभी अपने सवाल पे रहो, अपने सवाल पे रहो, इधर उधर नहीं, दाएं बाएं नहीं, अपने सवाल पे रहो। क्या? तुमने अभी क्या कहा? तुमने अभी ये कहा कि मज़ारों पर दूर से नहीं मांग सकते, मज़ार पे जाके मांग सकते, ये कहाँ लिखा है? चलो नबी अलैहिस्सलाम के मजार पे दूर से अब सुनो मांगना यार, शिर्क है, इसकी नहीं दलील नहीं दो। सुनो, चलो बोलो नहीं, चलो नहीं, अब सवाल किया, अब इसी पे रहो, क्या पहले इस पे रहो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्या क्या? अब तुम ये बताओ कि नबी और गैर नबी दोनों बराबर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो तुमने नानों कैसे की भी जैसी ऐसी नबी बातें के नहीं बराबरी कैसे कर दी फिर कर तुमने? सकता। फिर मैंने दूसरों को नबी के बराबर कैसे कर दिया? कैसे कर दिया मतलब? तुमने कहा ना कि मज़ारों पे दूर से नहीं मांग सकते, मज़ारों पे जाके मांग सकते हैं, ये कहा, मतलब कैसे साबित किया तुमने? तो मतलब इसका मतलब नबी का मज़ार और दूसरे लोगों का मज़ार बराबर है? अरे कहना क्या चाहते हो भाई, सही से बताओ। तुम कह के चले जाते हो, दूसरों पे अरे खाली बोलते रहते कहना हो, क्या बिल्कुल चाहते नहीं, हो, बरेली ठीक से बोलता है, बताओ, जानता कहना क्या पहुंचता चाहते हो, नहीं। कहना क्या चाहते हो, ठीक से बताओ। कहना ये चाह रहे हैं, तुमने भी ये कहा ना कि नबी के मज़ारों पे दूर से नहीं मांग सकते, मज़ारों पे जाके मांग सकते, ये कहाँ लिखा है? मैंने तुमने नहीं, कहा अभी, हाँ हाँ, मैंने ये कहा कि मजार पे जाके मांगना ठीक है? जायज है और दूर से मदद मांगना ये शिर्क है, इसकी दलील पेश करो। हाँ, तो ये बताओ कि नबी का मज़ार और दूसरों का मज़ार बराबर है? नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं। जब बराबर नहीं, बराबर है ना, तो फिर सारे मज़ारों को तुम नबी के मज़ार के साथ क्यों जोड़ रहे हो? अच्छा मतलब अगर दूसरों के मजार पे भी जाके मांग लिया जाए तो ये शिर्क हो जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम के मजार पे जाके मांगा जाए तो शिर्क नहीं होगा, तो उनसे दूर से मांगने से शिर्क होगा, और वली अल्लाह के मजार पे भी जाके मांग लिया जाए तो शिर्क हो जाएगा। ये सबकी दलील दो, कौन दलील देगा इन सब बातों की, या कहानियां गढ़ोगे अपने कने से? कुरान की आयत है, हदीस है कि पेश हम भी करो। अपनी कब्रों में जिंदा हैं। अच्छा तुम्हारा फिर नबी का भी अकीदा नहीं है क्या? हयातुन नबी का भी अकीदा नहीं है तुम्हारा? वो नहीं नहीं, कुरान की कौन सी आयत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है?
पहले मुशरिक बने तुम, अब हयातुन नबी का इनकार करके काफिर बन रहे हो। अरे हम नहीं, हम तो तुमसे देखो कबुलवा लिया तुमसे कि नबी अलैहिस्सलाम के। पहले तुमने मजे की बात सुनो दोस्तों, मजे की बात सुनो। अब ठीक है, सुनो अल्लाह ताला तो कह रहा है कि उदऊनी फस्तजिब लकुम, कि भाई मुझसे मांगो मैं दूंगा, तुमको अभी गैरुल्लाह से सुनो मांगना है। अभी सुनो अभी सुनो अभी फिर सुनो फिर नबी की तुमने हयात का इनकार किया, तुमने एक तफसीर इब्न अब्बास का इनकार किया, और तुम पता नहीं क्या क्या सब इनकार ही किए जा रहे हो। सुनो तो सब पहले, इनकार कर दो। अरे सुनो पहले, सुनो कंजुल मजे ईमान की का बात। तर्जमा तुम करते हैं ना, सुनो कंजुल ईमान का तर्जमा करते हैं ना, तो अपने आला हजरत को भी तुम गायब कर देते, लेकिन तर्जमा तुम करोगे नहीं। अरे सुनो भैया सुनो, ठीक है, देखो दोस्तों, हाँ। अब मेरी बात सुन लो दोस्तों। देखो अभी तक ये कह रहे थे कि अल्लाह के माँ सिवा, सुनो, अभी तक ये साबित करने में लगे थे कि अल्लाह के सिवा किसी से भी मदद मांगना शिर्क है। अब ये साबित करने में लगे हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को रोजे में मदद मांगना जायज है। पहले ये बताओ कि मस्जिद में खड़ा होकर ऐलान कर रहा है क्या? देखो दोस्तों, अब ये नबी अलैहिस्सलाम के हयात मुबारक भी साबित कर रहे हैं, उनके मजार मुबारक पे जाके मांगना भी साबित कर रहे हैं। वाह भाई वाह, नबी की नबी हयात नहीं है। मुझे बहुत हंसी आज तो, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बाग बाग हो गया कि एक देवबंदी आलिम नबी अलैहिस्सलाम के मजार मुबारक पे जाके मदद मांगने को जायज होना ये साबित करने में लगा है। कुरान और हदीस शरीफ से दलीलें दे रहा है। कल तक दलीलें देते थे कि शिर्क है। बरेलियों का मुनासिर आजम अपने आप को बोल रहा है। मैंने कब कहा? झूठ बोला इनने झूठ बोला, इनने झूठ बोला मुनासिर आजम। मैंने कब कहा अपने आप को? इसमें जाजिब भाई हैं कि नहीं? मुनाजिर बोल के लेके आए थे कि हमारे उससे बात करो मुनाजिर से। अरे हमने कहाँ तो गए जाजिब भाई? हमारी तुम्हारी तय हुई थी ना, खाली मुबाहिसा होगा, यहाँ कोई मुनाजरा नहीं होगा, हुई थी ना तय। तो फिर अब क्यों जाजिब भाई दोबारा गलत बातें कर रहे हो? अच्छा ये देखो बताओ नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पे मदद मांगना जाके ये जायज है, और किसी वली के मजार पे जाके मदद मांगना कैसा है ये बताओ? अभी तुमने क्या कहा कि ये देवबंदी आलिम नबी की हयात को भी मान रहा है, इसका मतलब तुम नबी की हयात को नहीं मानते हो? अरे देवबंदी जो है वो नहीं मानते, वो इनकार करते हैं। वो ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की देवबंदी नहीं मानते जिस क्या? तरीके से तुम बता रहे हो इस तरीके से नहीं मानते। तुमने कहा भाई, दलील दो, कहाँ लिखा है अरे कि देवबंदी नहीं मानते? अरे सुन तो लो भाई, सुन तो लो तुम सुनूंगा बाद में। तुमने पहले कहा अरे जब सुनोगे ही नहीं तो फिर बात कहाँ से आगे बढ़ेगी? सुन लो जिस तरीके से तुम मान रहे हो ना। अरे सुन लो भैया, जिस तरीके, हाँ बता रहा हूँ, सुनो। अरे बता रहा हूँ सुन तो लो। अरे बता रहा हूँ सुन तो लो। जिस तरीके से बता तो रहा हूँ यार, बता तो रहा हूँ, सुन लो, बता रहा हूँ। जिस तरीके से तुम नबी अलैहिस्सलाम को हयात मान रहे हो कि वो उनसे जब मदद मांगी जाए तो वो हमारी मदद करते हैं, सुनते हैं, इस तरीके से देवबंदी नबी अलैहिस्सलाम को हयात नहीं मानते कि वो हमारी सुनते भी हैं, ये कह रहा हूँ। क्या कहा तुम? अपने सवाल में तुम उलझे रहते हो कसम से। अरे तुम उलझ रहे हो, पता नहीं कभी नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पे जाके मदद मांगना जायज है, दूर से मांगना शिर्क है, औलिया अल्लाह के मदद। अब मुझे खाली एक बात का जवाब और दे दो, क्लियर हो जाएगा कि औलिया अल्लाह के मजार पे जाके मदद मांगना ये कैसा है, ये और बता दो। चलो अच्छा ये सुनो, औलिया अल्लाह के मजार पे जाके मांगना कैसा है? हाँ इसका और बता दो खाली बस। अभी जब तुमने मजार वाली बात छेड़ी तो उस पे वाज़ेह नहीं हुआ। नहीं मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ ना कि औलिया अल्लाह के मजार पे मदद जाके मांगना ये कैसा है? तुम लोग कुछ जानते नहीं हो, खाली पूछोगे, कल से पूछ ही रहे हो। तुम बताइए तो तुमको बोल रहा हूँ, पूछेंगे मुझे कहोगे। मैंने क्या कहा? न यूं सदमे उठाते तुम, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राज़े सर्वस्ता, न यूं रुसवाइयां होती तुम्हारी। तुम्हारा आला हजरत ने हदायत बख्शिश में लिखा है कि तुम्हारा बंदा अजाब में है। तो किसका बंदा अजाब? हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, देवबंदियों तुम्हारा ये बंदा अजाब में है थानवी। मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं सुन लो पहले, मैं ये कह रहा हूँ, खाली एक जवाब दे दो, औलिया अल्लाह के मजार पे जाके मदद मांगना जायज है कि नहीं, हाँ या ना? अरे भाई ये बताओ, हदायत बख्शिश किसकी किताब है? औलिया अल्लाह के मजार पे जाके मांगना जायज है कि नहीं है?
हजरत उधर मत थानवी की भागो है। अभी, उसका जवाब दे देंगे इंशाल्लाह, उसका जवाब दे देंगे। सुनो, तुम्हारे भाई मैं तुम्हारे उसका मुजद्दिद साहब जवाब कह रहे दे हैं तो बंदे पे डंडे पड़ रहे हैं। उसका जवाब देंगे। पहले ये बताओ, मजार पे जाके पहले मांगना ये जायज है कि नाजायज? सिर्फ हाँ या ना। अरे तुम भी कुछ बताओगे, तुम बताओ तुम्हारे यहाँ जायज है कि ना? ये बहाना है, तुम बताओ तो हम भाई तो चलो। जायज कहते हैं भैया, उसमें क्या है? अब तुम बताओ जायज है कि नहीं? यार दलील दो। तुम मानते क्या हो तभी तो दलील दी जाए। अरे भाई कुरान शरीयत तुम्हारी अकल पे चलेगी, तुमने जायज औलिया कह दिया, अल्लाह दलील लो। के मजार पे जाके मदद मांगना ये जायज है कि नहीं, इसकी दलील? तुमने कहा भी जायज है ना, हाँ बिल्कुल। तो दलील लो। हाँ देंगे। तुम, हमें ये तो पता चल जाए तुम क्या दलील मानते क्या हैं, है? तभी तो अभी तो दलील दे। अभी तो मेरे नंबर पे देखो, मेरे मैं नंबर पे भेजो दलील अभी। दूंगा, मैं बिल्कुल दलील दूंगा। पहले ये बताओ तुम मानते क्या हो? कयामत तक नहीं दोगे, कयामत तक नहीं दोगे अरे दलील जब तुम। यही नहीं पता चलेगा तुम क्या मानते हो तो दलील किस बात की दूं? तुम अरे नाजायज भाई जब मानते हो तुमने क्या? कह दिया हम मानते हैं जायज है, तो तुम दलील लो ना। अरे तुम नाजायज मानते हो क्या? हेलो, कौन? नाजायज मानते हो क्या? वो तो छोड़ो, तुम क्या मानते हो? तुमने कहा कि हम कहते हैं अरे जब जायज तुम है, तो कुछ जायज की मानते ही दलील नहीं दो। तो दलील क्यों दूं? तुम जब कुछ मानते ही नहीं तो अरे दलील क्यों दूं? तुम अपने मानने की दलील लोगे, तुमको ये तो कुछ तुम भी क्यों पता नहीं मांग कर, रहे हो? तुमको जब पता तुम है कुछ नहीं मान फिक्का रहे तो तुम फिक्का दलील कायदा क्यों मांग रहे है, हो? दलील वाला मुद्दई। तुम फिक्का दलील कायदा मांग है, क्यों? दलील अच्छा, वाला मुद्दई। तुम दलील क्यों मांग रहे हो? हाँ मैं मुद्दई हूँ, मैं दलील दे दूंगा। तुम मांग क्यों रहे हो ये बताओ? क्योंकि तुम उसको जायज बोल रहे हो, तो जायज की दलील क्या है तुम्हारे पास? तुम क्या क्या शरीयत तुम्हारे अकल पे तुम चलेगी? नाजायज बोल रहे हो क्या? मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, तुम अपनी दलील दो तो फिर पहले। दलील क्यों मुझे मांग तुम रहे हो दलील जब दे तुम दो, कुछ मैं नहीं तुम्हारी बोल मान लूंगा चलो। रहे? तुम दलील दे दो, मैं तुम्हारी मान लूंगा। आसिफ भाई, इनकी ये हालत हो चुकी है कि तुम अल्लाह के अलावा मजार पे जाके मांगना कैसा है उसको ये कुछ भी नहीं बोल रहे। और नबी गाइस गाइस अलैहिस्सलाम ना के करो, मजार पे गाइस जाके गाइस मदद मांगना जायज है ये बोल रहे हैं। और तुमसे पहले गाइस ये गाइस ना कहते करो, होंगे दलील दो कि दलील। मुतलकन अल्लाह के अलावा गैब में, गैर आदिया में किसी से भी मदद देखो मांगना ये शिरक है। गाइस गाइस अब ना देखो करो, ये कहाँ कहाँ भाग चुके, कहाँ कहाँ फंसे और कहाँ कहाँ गाइस भागे। गाइस गाइस ना करो। नो गाइस गाइस और दोस्तों दोस्तों ना करो, दलील दो। एक भी बात की दलील नहीं तुमने देते हो, अगर तुम्हारे ये मुंह कह से दिया, शरीयत। तुम अगर ये कह दो कि मैं जायज हूं तो मुझे दलील देने की जरूरत नहीं है। तुम कह दो कि मैं नाजायज मानता हूँ, फिर मैं दलील दे देता हूँ। अब बताओ क्या मानते हो? क्यों तुम दलील क्यों नहीं दोगे भाई? दावा किया तुमने। अरे देखो, इंसान कब दलील देता है? जब सामने वाला मुखालिफ हो, यानी उसका इनकार करे, तभी तो दलील देता है। अगर वो भी इस बात का कायल हो, इकरार करे, तो दलील क्यों दी जाएगी? मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर कहाँ तुम लिखा इनकार है? कर रहे हो कि कहाँ लिखा तुम्हारे है? नजदीक कहाँ लिखा है? नाजायज है, तभी तो किसने मैं कहा जायज था? की दलील दूं। ये हेलो, कहाँ लिखा है? चलो बताओ तुम नाजायज मानते हो? भाई। जो मैंने कहा है ना कि दलील वाला मुद्दई, अरे ये भैया हेलो, हिदाया फिक्र हेलो, 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 लिखा अरे हुआ है। भैया हेलो। मैं मुद्दई हूँ, जिम्मे मेरे दलील है, लेकिन तुम मानते क्या हो तभी तो मैं दलील दूं। तुम जायज कह रहे हो तो दलील मैं दो दलील ना की फिर, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नाजायज कह रहे हो तो दलील फिर दो मैं तुम। दलील दूं। जैसे ही तुम ये कहाँ नाजायज लिखा हुआ है? कहोगे वैसे ही मैं दलील दे दूंगा। ये कहाँ लिखा हुआ है कि भाई, ये कहाँ लिखा हुआ है कि सामने वाले को जब वो इनकार करे तब है? ये कहाँ लिखा हुआ है? चलो बताओ। देखो, सामने वाला जब सवाल करता है तो अगर वो इस देखो नीयत मेरी से सुनो, करता है कि तुम उसको कुरान और मालूम हदीस नहीं में है ना, तो जवाब दिया जाता कुरान है। और हदीस में तुम या लोग फिर अपनी वो ये ज़हनी कहता है आवाज़ी कि मैं निकालते इस हो। बात को सुनो मानता सुनो ही नहीं, सुनो, तब जवाब दिया जाता। अगर कुरान उसको और खुद हदीस को में पता हो तो जवाब शरीयत क्यों के दिया अंदर जाएगा? तुम लोग अपनी ज़हनी इसीलिए मैं आवाज़ी तुमसे कह दिखाते रहा हो। हूँ, देखो ये बच्चों सुनो, वाली बातें मत करो, ये बच्चे लोग करते हैं। बच्चों मुझे वाली सिर्फ बात इतना नहीं है, बता दो, बच्चों वाली बात ये नहीं है। बच्चों वाली पूरी बातें है ना, रिकॉर्डिंग ये मौजूद बच्चों है, वाली बातें है तो ना कि तुम मौजूद है, मुझे ये शुरू भी से नहीं लेके बता अब रहे कि तक तुम तुमने क्या मानते हो अकीदा और और मुझसे अकीदत दलील की का किसी दलील मुतालबा नहीं कर दी रहे है। हो। ये बच्चों वाली ही तो बातें हैं। बच्चों वाली बात नहीं है। तुम इतनी लंबी गुफ्तगू हो गई, तुमने इतने सारे दावे किए, एक की भी दलील नहीं दी है। अरे मेरा मेरी दावा सारी तो दलील तुमसे मौजूद साबित है, हो जो गया तुम ना, लेकर नबी अलैहिस्सलाम से मदद मांगना क्या जायज है। साबित हो हो तो गया? गया क्या साबित, और साबित हो कैसे गया? साबित शरीयत करूं? तुम्हारी, शरीयत तुम्हारी ज़हनी आवाज़ से चलेगी, तुम कुछ तुमने भी कह तो बनाते दिया रहो। मदद मांगना जायज है, और क्या साबित हैं? करूं? क्या बोलते हैं ये लोग? एक हिंदुओं की पूरा तरह जाके कल देवबंदी से तुम आलिम जाके मैंने किसी अपने कबुलवा वली दिया, की, एक देवबंदी आलिम सुनो ने सुनो, कबूल कर लिया कि मदद मांगना जायज है नबी अलैहिस्सलाम से, और काई की दलील दो? दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा